So this is about transaction. If I talk about yeah, if I'll talk about the top clients, so we are dealing across industry. So we have a spring manufacturer, we have a fan manufacturer, juice manufacturer, and then yeah, valve manufacturer. Different kind of industries are associated with Transact right now. If I'll talk about the clientele, we have 20,000 plus people who are using Transact across India. And FRT is the first response time, what you can see on the screen, which is less than 20 seconds. So when you face any issue or you raise a chat or something, the team is there within 20 seconds. The knowledge center, we have 800 plus FAQs and articles to serve you better. So for each and every features, you can find a video or article in our knowledge base. Plus customer centric approach that we are always open to feedback. Now talking about this session, so what all things we are going to discuss in this session is, first I'll give you a product overview, key product kya karta hai, kaise karta hai. Then whatever queries you have, we can have a discussion on them, and then how you can start. That is the next steps after this discussion. What all things you need to do on Transact. That is something we are going to discuss. I guess we are clear. If you have any question, any query, you can put it on chat, or else if you give me a go ahead, I'll just switch to my screen to the product screen and start giving the showing you the product. So I would request you to send yes or no if you want have any query. So I guess Anirudh tell us to continue. And any other concern from Anuj, Lab 2 or Shalini? Anything? No, till now, no. Okay. We are good to go. Okay, great, great, great. In case anything is there, you can just put it in chat. Yeah, sure. Okay, thank you. Just switch to the product. Right. So this is a screen which you see as soon as you log in into the product. So I believe that you all have already signed up for the product. ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करते हो, you see this screen. Over here, you will see two sections. One is a lifetime free modules, another is a paid for module. So first, let's discuss about the lifetime free module. So there are different things like transaction, quotation, payment, inventory, approval, what you can see. So transactions are nothing but your purchase and sales transaction, whatever active transactions you have, where you can create documents like PO, order confirmation, purchase order confirmation, sales invoice, service invoices, those kind of things can be created. Whereas in quotation, you can share the quotation with your customer prospects, or you can request for quotation to your vendors. In case of, let's say, I want to buy a pen, I want quotations from various suppliers. So I can send a request for quotation from here. I'll come to that. So whatever questions you are having, you can put it on chat. I'll discuss that once I'll finish this explaining the product. Okay, then the payment options is there, where you can log the payment. Inventory, as the name suggests, you can put define all the inventory items, and stock movement and everything can be seen over there. Then approval is an internal approval. उसके बाद आपका internal approval in sense कि let's say there you have a team of 5 or 10 people and someone is designated for let's say creation of purchase order. You can set a rule. Let's say if any purchase order greater than 20,000 need to be approved by management or something, those kind of rules can be set in that. Access management, business intelligence, and reports. These are the output modules, business intelligence and report, if I talk. So this is what you get in the free version, which is a lifetime free. There is no hidden cost or nothing, no boundaries on that. There's no limitation on creation of document, adding user, nothing like that is there. If I'll talk about the product, paid version, there are three modules what you can see: production, resource planning, and subcontract. However, you can activate a trial over here. If you want to explore that how it works, then that can be activated. These modules help typically to a manufacturer. Here, first you will solve the inventory and documentation, then you will jump into the production and resource planning. This is how it works. Right now, I'll start with the output first, like business intelligence and reports. So let's say अगर मैंने ये सिस्टम in place किया है, मेरा benefit क्या हो रहा है, मुझे output क्या मिलेगा इस system से, what I can expect out of this system. So that's where I jump to the business intelligence. Now in the business intelligence, as you can see, we have distributed to 6 parts: sales order, or invoice, purchase, quotation, accounts, and inventory. In this, let's say if we'll talk about the sales order,
You can have a reason wise sales order data, that month on month sales कितना जा रहा है आपका, आपका कस्टमर वाइज कैसे जा रहा है, टॉप कस्टमर्स कौन से हैं, कैटेगरीज कौन सी हैं, आपका प्रोडक्ट कौन सा है टॉप, वो सब देख सकते हो. प्लस देयर आर 3 कार्ड्स which you can see over here. So order due today, order due in next 7 days, order overdue. So typically what happens, जब भी आप कोई ऑर्डर आता है, आप उस ऑर्डर को पंच कर लेते हो एंड देयर इज अ टाइम जब आप उसको डिस्पैच करते हो, तो आपने उसको एक टाइमलाइन दिया है कि इस डेट तक डिस्पैच हो जाएगा. वो टाइम के हिसाब से ये कैलकुलेट हो गया जाता है ऑर्डर ड्यू नेक्स्ट 7 days और ऑर्डर ओवरड्यू. लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो व्यू डिटेल्स का भी बटन है, फिर क्लिक ओवर देयर, इट विल टेक यू द डिटेल्ड रिपोर्ट कि आपका कौन कौन सा ऑर्डर ड्यू है, किस डेट को ड्यू है, किस टाइम पे ड्यू है, ऑर्डर डेट क्या था, ऑर्डर नंबर, आइटम क्या है, आपका किस अमाउंट का है, डिस्पैच ओसी क्वांटिटी कितनी थी, डिस्पैच कितना किया, अगर पार्शियल डिस्पैच कर दिया तो बैलेंस कितना है, स्टॉक में मेरे पास कितना है. देन यू कैन सॉर्ट इट बाय बैलेंस वैल्यू. लेट्स से कि मेरा किस पे फोकस करना है, मेरा मैक्सिमम ऑर्डर्स कितना है. लेट्स से इन दिस कंडीशन, इन दिस केस 1,66,00,000 का ऑर्डर पेंडिंग है जो कि ओवरड्यू है. उसमें से इफ आई वांट टू फोकस कि मेरा टॉप कौन से ऑर्डर्स हैं, तो मेरे टॉप ये 4 ऑर्डर्स, 3-4 ऑर्डर्स में सर्व कर लूंगा, तो 60 से 70 मोर देन 70% में रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ यहाँ से. ठीक है, तो ये फोकस अलाइन करने के लिए इट हेल्प्स यू अलॉट. Now if I jump back to the business intelligence, they are similarly you can act in invoice or purchase में अगर मैं बताऊँ तो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड कार्ड कौन सा होता है, तो ऑर्डर ड्यू इन नेक्स्ट 7 days. इट हेल्प्स योर परचेज टीम टू अलाइन, let's say, to follow up with your vendors. Let's say कि मैंने see we have automated follow up option in the transaction कि आप set rule set कर सकते हो कि automatically उनको मेल चल जाए, रिमाइंडर मेल चल जाए कि ड्यू डेट आ गया है. बट एट द सेम टाइम कई बार अब इंडिया में अपने को फोन करना पड़ता है. वो फोन करने के लिए इट इज वेरी इजी कि ऑर्डर ड्यू देखा कि नेक्स्ट 7 days में कौन कौन सा है, उनको फॉलो अप कर लिया. सो दैट्स हाउ इट हेल्प. Apart from that, you also have the supplier wise, purchase wise, whatever graphs we have seen in this in terms of sales, similar graphs are available over here as well. Talking next is the quotation. When I talk about the quotation, the most important thing is my conversion rate, कि मैंने कितने का quotation भेजा है. तो ब्लू कलर जो ग्राफ दिख रहा है आपको, वो है जो मैंने कोट किया है, जितने के quotations मैंने भेजे अमाउंट वाइज, एंड रेड कलर्स आर द कन्वर्जन. यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने टोटल कोटेड वैल्यू 18.32 लाख का था, टोटल कन्वर्जन मेरा 40% हो रहा है. So that's something we can see कि अगर मेरा conversion rate अच्छा है, just taking an example, then I might need to work on top of the funnel कि मेरा मुझे और quotations भेजने important है, मुझे और customers figure out करने important है. अगर मेरा conversion खराब है, then I need to talk about with the team, my marketing team और sales team की conversion क्यों नहीं हो रहा है, हम quotation बहुत भेज रहे हैं. तो that is something, it gives you an alignment कि आपको किधर focus करना है, वो चीज़ align करते हैं. Again, you can have a, let's say, weekly meeting or monthly meeting. You can just download a report over here कि follow up करना है, किसको किसको quotations भेजे हैं जो conversion नहीं हुआ है, वो यहाँ पे दिख जाएगा. Similarly, there is accounts module, accounts page where you can see the total payable, total receivable, received, paid amount differently, and so on month breakup of that, and then receivable wise, payable wise, these things can be seen. Jumping next, which is again a very critical thing for any business, be it trader, manufacturer, retailer, whoever it is, he or she is. यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत क्रिटिकल होती है कि मेरा स्टॉक वैल्यूएशन क्या चल रहा है, मेरा स्टॉक सही जगह है कि नहीं. लेट्स से इन दिस केस एक्सेस स्टॉक 1 है, तो दैट मीन्स कि मैंने कुछ एक ऐसा आइटम है जिसका मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिफाइन किया था, उससे भी ज्यादा मैंने परचेस करके रखा हुआ है. देन यू नीड टू स्पीक विद योर परचेस गाय कि ये एक्सेस स्टॉक क्यों परचेस कर रहे हैं. और एल्स लेट्स से यहाँ पे लो स्टॉक है, लो स्टॉक है, दैट मीन्स कि जब मिनिमम स्टॉक लेवल आया था उससे पहले मैंने ऑर्डर नहीं किया, क्या तो ऑर्डर प्लेस नहीं किया या मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ. वो इन बोथ द केस योर परचेस टीम इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब आंसरेबल इन दिस केस कि क्या हुआ था. देन अगेन स्टॉक वैल्यूएशन देख सकते हो, टॉप सेलिंग देखना है आपको, वो देख सकते हो टॉप सेलिंग कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी टॉप सेलिंग है, टॉप बॉट कौन सा है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि टॉप बॉट कौन सा जा रहा है. एक्सेस स्टॉक का डिटेल देखना है कौन सा आइटम, जैसे मैंने वहाँ पे एक्सेस दिखाया था एक आइटम, इसका मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज 100 whereas we have a stock of 1609. दैट मीन्स मैंने 1509 एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हुआ है. ये क्यों रखा है, बीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हमने परचेज किया है, क्यों किया है, इसका आंसरेबल होना चाहिए. So this is one thing which you get on Transact. The other thing, if I'll talk about, is the report. So that is one kind of output. Apart from that, you have like 70 types of different type of reports. So sales के लिए है, purchase के लिए है, product service, stores,
quality, general and production, so on. It goes till GST. तो different type of reports हैं which are ready to use. You don't need to do anything. आपको जैसे जैसे ही आप यूज करना शुरू करते हो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ डेटा फेच होता जाता है. जैसे मैं अगर मुझे देखना है सेल्स का क्या चल रहा है तो मैं जस्ट नीड टू क्लिक ओवर हियर. मैं फिल्टर्स चूज कर सकता हूँ अपने हिसाब से या फिर मैं जनरेट रिपोर्ट करता हूँ. जैसे ही मैं जनरेट करता हूँ रिपोर्ट वो सारा डिटेल्स यहाँ पे बेस्ड ऑन द फिल्टर्स वॉट एवर आई हैव सिलेक्टेड वो यहाँ पे डेटा आ जाता है. Again here you get an option जैसे आप अभी if you can see on my screen there are just 27 columns over here. अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ I can choose the columns. So whatever data which is getting logged, जो भी आप डॉक्यूमेंट ऑर्डर कंफर्मेशन बनाते समय डाल रहे थे वो सारा डेटा अवेलेबल है. ऐसा कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है आपका. यू कैन सेलेक्ट ऑल. जैसे आप सेलेक्ट ऑल करते हो यहाँ से 26 के लिए 76 हो गया. नाउ वी हैव 77 कॉलम्स ओवर हियर. So all the data is available handy with you. You can just download it in Excel and play the way you want to. तो वो सब चीज़ यहाँ पे की जा सकती है. ठीक है. प्लस ग्रुप बाई करने का ऑप्शन है where you can see the customer name wise monthly कितना ऑर्डर आ रहा है मुझे ये देखना है. तो वो यहाँ पे कस्टमर नेम वाइज मंथ ऑन मंथ आ गया या वाइस वर्सा जैसे भी आपको कॉलम सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है. These all options are there with almost all the reports if I say. ठीक है. So this was about the report section. Now मैंने देखा कि बिजनेस इंटेलिजेंस में ग्राफ आ रहा है रिपोर्ट में रिपोर्ट डेटा आ रहा है वो आ कैसे रहा है हाउ इट इज कमिंग. सो टू सी दैट फर्स्ट विल डिस्कस द 3 मेन मास्टर्स. लाइक कि सबसे पहले सेटिंग्स. अब यहाँ पे देखोगे बायर्स एंड सप्लायर्स एंड इन्वेंट्री. We'll just give you a quick snapshot of all these 3 things and then we'll jump into the transaction that how a entire flow works. So I'll start with the settings module. सेटिंग्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके जो भी आपकी कंपनी की डिटेल है लाइक बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी लोकेशन, बैंक डिटेल्स, पेमेंट टर्म्स, ये सब यूजर्स, टीम एडवांस करोगे तो और भी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं. ये सारे ऑप्शंस आप अपनी कंपनी के सेटिंग्स यहाँ पे सेव कर सकते हो. दैट इज वन थिंग. सेव करने के लिए जस्ट ऐड बिलिंग एड्रेस पे क्लिक किया और ऐड कर लिया. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट अगर मैं आता हूँ कि बायर्स एंड सप्लायर्स पे. बायर्स एंड सप्लायर इज अ मॉड्यूल जहाँ पे आपके सारे काउंटर पार्टी डिफाइंड होते हैं. बी आपका वो बायर है या सप्लायर है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसकी सारी डिटेल्स लाइक मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे उसकी डिलीवरी लोकेशन, उसके बिलिंग एड्रेस, उसका कंपनी डिटेल्स, यूजर्स कौन है, ओपनिंग बैलेंस, ये सब कुछ यहाँ पे डिफाइंड है. ठीक है. Sorry for interrupting, Sahib. Anirudh, can we have a discussion later on? Towards. Sure. Thank you. If I'll talk about the inventory में all the items can be defined. यहाँ पे जैसे देख रहे हो मैंने स्टील, MSC, वॉल्व, जो भी आइटम्स है मैं परचेस कर रहा हूँ, सेमी फिनिश गुड है, फिनिश गुड है, एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड विद द टाइप ऑफ आइटम, HSN, टैक्स, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल. इफ यू रिमेंबर मैंने वहाँ पे एक्सेस इन्वेंट्री दिखाया था तो वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो भी मैंने डिफाइन किया है या लो स्टॉक दिखाया था वो मिनिमम स्टॉक लेवल से आ रहा था. सो दिस इज समथिंग राइट नाउ वी आर जस्ट डिफाइनिंग थिंग्स कि ये सारा सेटअप हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक ऑर्डर आया है या एक इंक्वायरी आई है वहां से लेके पूरा मेरा फ्लो बिजनेस का चलता कैसे है ट्रांजैक्शन. विल टॉक अबाउट दैट टू अंडरस्टैंड दैट. सो आई गेस टिल नाउ इफ यू हैव एनी कंसर्न आई विल जस्ट डिस्कस. लेट मी जस्ट change overdue 7 days to 30 days. Overdue in next 7 days, that is static for all the companies. If I'll say Anuj, uske alawa Anirudh, data is this report transferred to Excel file? Yes, definitely. I'll just show you back कि आपने जो ये देखा था यहाँ पे रिपोर्ट देखा था यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है. जो भी रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हो वो एक्सेल में ही डाउनलोड होता है. दैट कैन बी सीन. इज दिस डैशबोर्ड राइट बॉस? So this whatever you have seen the data over here is a dummy data. तो जो मैं प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ we'll talk about this. ठीक है. What about finance and CRM? I'll come to that towards the end of it. ठीक है. इसके अलावा किसी का कुछ है और shall we proceed? If you want me to proceed, just type yes on the chat. I'll come to know about it. Hello. I have one question, Sai. Okay. Actually, अभी आपने जैसे यहाँ पे बताया वेंडर या सप्लायर है, राइट? तो सप्लायर का सारे डिटेल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट?
नहीं, ये जो सप्लायर है क्या, मुझे क्या पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, ये मास्टर्स में हम लोग डिफाइन नहीं करते। यहाँ पे इन जनरल सप्लायर्स होता है, आप उसको जो भी सप्लाई, टिपिकली इन B2B केसेस आपके सप्लायर फिक्स्ड होते हैं, सप्लायर्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। तो यू कैन मतलब नॉर्मली परचेज वालों को पता रहता है, तो उसके थ्रू दे कैन सेलेक्ट इट। लेकिन यू हैव मतलब सिस्टम डोंट रिस्ट्रिक्ट यू। अगर आप लेट्स से मैंने आनंद एग्रो केयर सेलेक्ट किया एज माई सप्लायर, और वहां पे जाके मैं उसको कुछ भी आइटम को ऑर्डर दे सकता हूँ, वो यहाँ पे सिस्टम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। करेक्ट, यू आर, अभी आप यू आर करेक्ट, यू, लेकिन बस ये जैसे क्या है, इसको हम आइटम मास्टर में जाके इसको सेलेक्ट करते हैं। आई विल शो यू दैट कि कैसे सेलेक्ट करते ओके, हैं। ठीक है, I guess we till now whatever we have shown is clear to everyone. I'll just jump to the quotation, but मैं फ्लो दिखाऊंगा तो बाकी सारी जो क्वेरीज है कैसे सेलेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब चीजें दिख जाएंगी पे आके। I'll just jump to the quotation module for this. So let's say let's take a case where we have got received an inquiry from someone. So मुझे अगर आज इंक्वायरी आई है, तो इंक्वायरी के आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, दैट इज समथिंग वी कैन सी। तो कोटेशन मॉड्यूल में अगर आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो पेज दिख रहा है आपको, या यू कैन सी कि पेंडिंग कौन सी है, कन्वर्टेड कौन सी है, कैंसिल कौन सी है, कोटेशंस हैं वो देख सकते हो। आप सेंट और ड्राफ्ट देख सकते हो। ड्राफ्ट टिपिकली यूज होता है जैसे आपको कोई इंक्वायरी आई, आपने उसका ड्राफ्ट सेव करके रख लिया, अभी आपने उसको सेंड नहीं किया है कि यार इंक्वायरी पे कोटेशन भेजा नहीं है। इंक्वायरी और कोटेशन में टिपिकली आइटम्स एंड डिटेल्स सब कुछ सेम होता है, जस्ट द प्राइस एंड अमाउंट इज समथिंग व्हिच यू ऐड। तो वो अभी आपने नहीं किया होगा शायद, वो करके भेजना है, इसलिए आपने बस ड्राफ्ट करके उसको रख लिया। लेट्स से आई वांट टू सेंड अ न्यू कोटेशन, create a new quotation. So I'll just click on the create document, click on sales quotation over here. Here we have both the options. Either I can select from the existing companies who are already added in my buyers and suppliers, or I can add a new company from here. Let's say I'm sending it to Armstrong, which is already there. तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसकी बेसिक डिटेल्स जो भी होती है, बाइंग बाय डिटेल्स, डिलीवरी लोकेशन, आपकी कंपनी की डिटेल्स, ये सब कुछ ऑलरेडी सेटिंग्स एंड बायर्स एंड सप्लायर मॉड्यूल से फेच हो जाती है। देन अगेन यू कैन हैव इंक्वायरी नंबर, लेट्स से वाया कॉल आया है, इंक्वायरी किस डेट को आया है। इफ यू वांट टू हैव अ डिलीवरी डेट यू कैन पुट इट ओवर देयर, अदरवाइज इट इज अ नॉन मैंडेटरी फील्ड। मैं पेमेंट टर्म्स में डाल सकता हूँ। यू कैन आल्सो हैव एडिशनल फील्ड्स ओवर हियर फ्रॉम द, यू कैन ऐड इट फ्रॉम द सेटिंग्स मॉड्यूल। देन यहाँ पे आइटम पे आता हूँ, लेट्स से मेरा ग्लोबल है, व्हाट फॉर व्हिच आई एम गिविंग द कोटेशन। अगेन यहाँ पे आप देखोगे HSN कोड, क्वांटिटी, प्राइस, जो भी मैंने इन्वेंटरी में डाल रखा है वो सब यहाँ पे फेच हो जाता है। आई कैन पुट द क्वांटिटी, मॉडल नंबर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये बाय डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, ये आपको शायद आपकी प्रोफाइल में नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने सेटिंग से ऐड किया है। तो आई कैन पुट द मॉडल नंबर A001। आई कैन ऐड n नंबर ऑफ आइटम ओवर हियर, तो कोई उस पर लिमिटेशन नहीं है। एक्स्ट्रा चार्जेस आप यहाँ पे लॉजिस्टिक डिटेल्स जस्ट डाल सकते हो, क्या है आपके टर्म्स एंड कंडीशन, क्या है जो भी आपने टर्म्स ऑफ कंडीशन सेव कर रखे हैं सेटिंग्स में, वो सब यहाँ पे फेच हो जाते हैं। देन आपके कुछ एडिशनल टर्म्स हैं वो आप कमेंट में डाल सकते हो, फाइल्स अटैच कर सकते हो यहाँ पे, तो जो भी आपको फाइल अटैच करनी है दैट कैन बी डन ओवर हियर। देन ईमेल कैसा दिखेगा, जो ईमेल सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम से ऑटो जनरेटेड ईमेल जाता है, आई कैन जस्ट क्विकली शो यू दिस इज व्हाट अ कस्टमर रिसीव्स। तो एक PDF कॉपी अटैच रहती है प्लस आपका लोगो, आप एक वेलकम मैसेज। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड कि जैसे आप Amazon से ऑर्डर करते हो या फ्लाइट बुक करते हो, तो एक स्नैपशॉट आपको पहले बाहर ही दिख जाता है जैसे ईमेल खोलते हो। सो दिस इज दैट स्नैपशॉट के अंदर क्या चीजें हैं, उसका एक स्नैप दिख गया यहाँ पे, प्लस आपके ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आ जाता है, सो दैट people can directly reach out to you. So this is something which is there. If you have noticed, I'll just quickly brief you about this कि हमने कोटेशन या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को 3 पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है। That is first section where it covers your detail, customers details and document detail. Second section is the item detail. Then the last section which consists of extra charges या attachment, additional information. ये सारा कुछ कवर हो रहा है। सिस्टम ऑटोमेटिकली IGST, CGST, SGST कैलकुलेट कर लेता है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई यू हैव मेंशन्ड। तो एज पर गवर्नमेंट GST का रूल के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपका टैक्स चेंज होता है, तो वो सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट करता है। यू कैन सेव इट इन ड्राफ्ट, लेट्स से इफ यू डोंट वांट टू शेयर इट इमीडिएटली, या आपको अभी आपको प्राइस नहीं पता, अपने प्राइस ब्लैंक रख के आपने इसको सेव करके रख लिया,
बाद में जब भी आपको भेजना है तो आप इसको एडिट करके भेज सकते हो या डायरेक्टली सेव एंड सेंड कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ सेव एंड सेंड ऑल्सो इट विल आस्क यू कि ऑथराइज्ड है कि नहीं। जैसे इन दिस केस आई एम ऑथराइज्ड टू अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट, तो मैं इसको सेव एंड सेंड कर सकता हूँ। इन मेनी ऑफ द केसेस इट कुड बी पॉसिबल कि आपके जो जूनियर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं वो खाली ड्राफ्ट करते हों या वो खाली बना के आपको अप्रूवल के लिए भेजते हों, सो दैट रूल्स कैन बी सेट। As soon as you click on save and send, a copy of it will be shared with your counterparty. Plus आप WhatsApp शेयर कर सकते हो, WhatsApp का ऑप्शन है। Let's say you have received an order, तो अब यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकती हैं, we'll discuss all 3। कि नेगोशिएशन हो रहा है तो इन दैट केस यू कैन अमेंड दिस ऑर्डर। ऑर्डर नहीं आया तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, या फिर ऑर्डर आ गया, अगर आ गया तो आप इसके जनरेट ऑर्डर कंफर्मेशन कर सकते हो। तो if I click on the order confirmation, what system will does, it fetch all the data from sales quotation and place it in the order confirmation form। तो आप देख रहे हो सारा डिटेल ऑलरेडी फेच हो चुका है। ऑल आई नीड टू डू इज ऑर्डर का एक नाम देना है, लेट्स से सैंपल, एक नाम दे दिया। लास्ट टाइम मैंने डिस्पैच डिटेल दे दी, डेट नहीं दी थी। नाउ आई नीड टू फिल द डिस्पैच डेट। बेस्ड ऑन दिस डिस्पैच डेट मेरा जो मैंने बीआई दिखाया है, रिपोर्ट दिखाया, उसमें डेटा फिल होता है। ठीक है, जब ये कर लिया बाकी चीज यू कैन एडिट। लेट्स से क्वांटिटी में चेंज आया, 97 हो गया, प्राइस में कुछ चेंज आया, यू कैन डू द चेंजेस। 10,100 200 हो गया, वो सारे चेंजेस आप कर सकते हो। प्लस आपने लेट्स से उस समय एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं डाले थे तो यू कैन ऐड एन एक्स्ट्रा चार्ज, जैसे आपका पैकेजिंग चार्ज हो गया या अदर चार्जेस हो गए। दोस थिंग्स मेनी टाइम्स वी डू इन सच अ केस कि हम पहले डिफाइन नहीं करते हैं। लेट्स से पैकेजिंग मुझे डिफाइन करना है 100 रुपीज, ठीक है, इस पर जो टैक्स लगेगा ना, ठीक है, तो ये मैं पहले शायद कभी डिफाइन नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे डिफाइन करके आप ऐड कर सकते हो। नाउ यू कैन सेव एंड सेंड इट। अगेन इस पे भी ऑथराइजेशन लगा हुआ है, इन दिस केस आई एम अप्रूविंग ऑथोरिटी, तो आई कैन अप्रूव दैट। तो ये आपका अगेन मेल शूट हो गया, एट द सेम टाइम आपका व्हाट्सएप भी शेयर करने का ऑप्शन आ गया। सो ऑल द ऑप्शंस आर गिवन ओवर। आई जस्ट जंप टू द व्यू ट्रांजैक्शन। सो अभी तक हमने देखा कि लेट्स से मुझे एक इंक्वायरी आई, उस पर मुझे रिएक्ट अभी नहीं करना है तो मैं उसको जस्ट डिटेल डाल के सेव ड्राफ्ट करके रख दूंगा। अगर मुझे रिएक्ट करना है तो आई कैन शेयर अ कोटेशन विद देम। कोटेशन भेजने के बाद अगर उस पर कुछ एक्शन लेना है, लेट्स से नेगोशिएशन हुआ या जो भी चीज़ें, क्योंकि टिपिकली फोन पे नेगोशिएशंस होते हैं इंडिया में, या फिर मिलकर नेगोशिएशंस होते हैं, तो वो जो भी हुआ उसको अपडेट कर दिया। अपडेट करके आई कैन आइदर अमेंड द कोटेशन, कैंसिल द कोटेशन, और ये कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर कंफर्मेशन। ऑर्डर जब मेरे पास आ गया तो मैंने ये कंफर्मेशन भेज दिया। As soon as you create an order confirmation, इसकी एक ट्रांजैक्शन टाइमलाइन बन जाती है। I'll show you from zero कि कैसे कहाँ से मैं यहाँ पहुंचूंगा। तो अब ये कंफर्म्ड ऑर्डर है इसलिए वो ट्रांजैक्शन पेज में दिखेगा। ट्रांजैक्शन पेज में आप देखोगे कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए एक सैंपल ऑर्डर जो मैंने बनाया था वो है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टाइमलाइन यहाँ पे बन गई। सो अब आपकी टीम के पास करंट प्रोसेस में भी ऐसा होता है कि ऑर्डर की लिस्ट आ गई। अब 2 टीम का काम चलता है कि अब इसके बाद इस पे प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या ऑर्डर आया है, ऑर्डर लिस्ट निकालनी होगी, उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, इन्वेंट्री लिस्ट निकालनी पड़ेगी। तो टिपिकली व्हाट कंपनी डज इज कि रिपोर्ट सेक्शन में जाके मैं यहाँ से ऑर्डर लिस्ट तो ऑर्डर कंफर्मेशन आइटम वाइज निकाल सकता हूँ, जो भी मेरे नए ऑर्डर्स है उसका। और अगर मुझे इन्वेंट्री लिस्ट निकालनी है तो प्रोडक्ट प्राइस एंड इन्वेंट्री करके यहाँ पे रिपोर्ट है, इसमें आपकी पूरी इन्वेंट्री की लिस्ट निकल जाती है। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि रॉ मटेरियल कौन से हैं, वो कैटेगरीज आप डिफाइन करके रख सकते हो, या टाइप ऑफ मटेरियल आइटम से आप डिफाइन करके निकाल सकते हो। सो दोस थिंग्स कैन बी डन। उसको आप एक्सेल में आप प्रोसेस कर लिया। लेट्स से अब मुझे कुछ आइटम्स हैं, तो अभी मैं आपके साथ पेड वर्जन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी तक जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये फ्री वर्जन के फीचर्स हैं। पेड वर्जन में इसका और भी बेटर सॉल्यूशंस हैं, बट राइट नाउ वी वोंट जंप इनटू दैट फर्स्ट। पहले ये देखते हैं फ्री से क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है। सो लेट्स से मुझे पता चल गया कि 2-4 आइटम है कि जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। लेट्स से निकल अवेलेबल नहीं है, तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन अगेन होता है। क्या तो मैं कोटेशंस में जाके RFQ भेज सकता हूँ, which is sending it to multiple suppliers, vendors। जैसे in this case I'll just open already created, तो create करने के लिए यहीं पे प्रोसेस है। request for quotation का प्रोसेस वाइज it is pretty much same, इसलिए I'm not getting into that। मैं ऑलरेडी एक बना हुआ आपको दिखा देता हूँ, so you'll get an idea कैसे होता है। तो मैंने इस केस में RFQ भेजा होगा फॉर दीज मेनी आइटम्स, ये 10 आइटम के लिए RFQ भेजा था मल्टीपल वेंडर्स को।
यहाँ पे 3 वेंडर्स को भेजा था मैंने, तीनों के पास एक मेल जाता है जिसमें एक फॉर्म होता है, दे कैन फिल इन द फॉर्म एंड सबमिट इट, दैट इज वन वे। अदर वे कुड बी कि अगर वो फॉर्म नहीं भरते वो आपको फोन पे देते हैं, बहुत लोग होते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट बना के भेजेंगे, जैसे भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं काम करने के, वो अगर करते हैं तो जैसे इन दिस केस ऑल्सो आप देखोगे तीसरे वाले ने कोटेशन नहीं दिया, हो सकता है उसने फोन पे दिया हो या किसी और मीडियम से दिया हो, आपकी टीम उसके लिए पंच कर सकती है, उसके बिहाफ में प्राइस डाल सकती है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस आप ये समरी डाउनलोड कर सकते हो, लेट्स से टीम मेंबर्स आर वर्किंग ऑन दैट, आप टॉप मैनेजमेंट को शेयर करना है तो वो यहाँ से डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास सारे कोटेशन आ गए, आपने प्राइस कंपेयर कर लिया, अब यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फ्यू ऑफ दीज आइटम्स टू सम वेंडर, इस फर्स्ट वाले को करना है, दैट्स आई कैन जस्ट क्लिक ऑन व्यू, अदर एक्शन में जाके जनरेट पीओ पे क्लिक करता हूँ, तो इन दिस केस मेरा पीओ बन गया, पीओ का डॉक्यूमेंट बेसिकली एडिटेबल डॉक्यूमेंट बन गया, जहाँ पे आपके सारे आइटम क्वांटिटी जो आपने लिखी थी और उन्होंने जो प्राइस दिया था उस वो मर्ज होके आ गया। लेट्स से मुझे नहीं देना है सारा ऑर्डर, मुझे ये हटाना है, ये भी हटाना है, ये भी आइटम हटाना है, निकल मुझे करना है लेकिन 10 kg की जगह 20 kg का ऑर्डर है, तो जो क्वांटिटी चेंज करनी है वो सारा कुछ करके यू कैन सेव एंड सेंड इट। Process wise it is pretty much the same what we have seen earlier in case of sales quotation और order confirmation, ये प्रोसेस टिपिकली सिमिलर है। तो ये एक तरीका हो गया जब मैं कोटेशन से जाता हूँ। दूसरा तरीका हो गया, लेट्स से मुझे कोटेशन नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मेरा फिक्स वेंडर है, मैं इसी से हमेशा लेता हूँ, निकल कर मैंने ही फोन में बात कर ली, उसने रेट दे दिया, मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं यहाँ से क्रिएट डॉक्यूमेंट में जाके डायरेक्ट परचेज ऑर्डर बना सकता हूँ। डायरेक्ट परचेज ऑर्डर बनाने का अगेन द सेम प्रोसेस, आप यहाँ पे सप्लायर का नाम चूज कर सकते हो, नया सप्लायर ऐड कर सकते हो, बोथ द ऑप्शंस आर देयर एंड द सेम फॉर्म विल अपीयर, सिमिलर फॉर्म विल अपीयर, इट्स जस्ट इट विल बी अ परचेज ऑर्डर। अभी मैं परचेज का ही कोई एक बना हुआ ऑलरेडी खोल देता हूँ, सो विल गेट अ बेटर आइडिया। मैंने ये परचेज ऑर्डर बनाया होगा, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आपके पास यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस, आप यहाँ पे जब मटेरियल रिसीव होगा इनवर्ट बना सकते हो, टैक्स इनवॉइस बना सकते हो, जो भी वो भेज रहा है मटेरियल के साथ, परफॉर्मा इनवॉइस अगर उसने भेजा है तो वो पंच करके रख सकते हो, अगर कोई पेमेंट किया है आपने तो एडवांस रिसिप्ट वाउचर बनता है तो वो रिसिप्ट वाउचर बना सकते हो, मटेरियल आने के बाद अगर रिटर्न करना है तो डिलीवरी चलान के थ्रू रिटर्न कर सकते हो, तो दोज ऑप्शंस आर देयर। Apart from that, you also get an option in all the transaction timeline, be it sales or purchase, to post a comment. Let's say कि मैंने ये purchase order भेजा, उसके बाद मैं कुछ उसको डिजाइन भेजना है या कुछ स्पेसिफिकेशंस भेजनी है जो मिस हो गई purchase order, आप यहीं पे अटैच करके फाइल यहाँ अटैच कर सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो हाय जो भी मैसेज करना है। जो भी आपको मैसेज डालना है यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे अटैचमेंट डाल के एक्सटर्नल या इंटरनल बोथ वेज यू कैन शेयर। अगर आप एक्सटर्नल करते हो तो सेम पार्टी इसको जिसको परचेज ऑर्डर गया है उस पार्टी को सेम ईमेल पे एक रिवर्ट चल जाएगा। अगर आप इसको इंटरनल करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर टीम मेंबर को हाईलाइट करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे @ करके, जैसे आप व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे करते हो, सिमिलरली आप यहाँ पे टैग कर सकते हो। इन दिस केस इस बंदे को एक ईमेल चल जाएगा विद दिस अटैचमेंट विद दिस पीओ नंबर एंड ऑल द अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड टू, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से की जा सकती है। लेट से आपके पास मटेरियल आ गया, आपने इनवर्ट बनाया, इनवर्ट के आगे आपका जीआरएन ऑप्शन होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट टिपिकली इनवॉइस पंच कर लिया, नाउ यू हैव द मटेरियल रेडी विथ यू। तो मैं इन्वेंट्री में जंप करता हूँ। अब यहाँ पे इन्वेंट्री पे स्टोर वाले के पास यहाँ पे स्टॉक आ चुका है। अब वो टिपिकली उसका, अगर मैं एक दिन प्लान करूँ देखूं कि इन्वेंट्री अभी कैसे स्टॉक वाले लोग काम करते हैं या स्टोर वाले लोग काम करते हैं, तो टिपिकली अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन वाले बंदे आते हैं कि मुझे एक स्लिप लेके जिसपे जॉब कार्ड नंबर या जॉब नंबर या प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर कुछ लिखा होता है विद द लिस्ट ऑफ मटेरियल दे वांट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑर्डर। टिपिकली इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा होता है। या फिर आपका ट्रेडिंग है तो आपके पास इनवॉइस आते हैं, इनवॉइस के अगेंस्ट में आप मटेरियल रिलीज कर रहे हो। अगर आपके पास इनवॉइस आ रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेंट्री अप्रूवल का ऑप्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू दे कैन अप्रूव, उतना स्टॉक कम हो जाएगा। अगर इन केस मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो भी स्लिप लेके आए आपको क्या करना है, टिपिकली यहाँ पे स्टोर वाला टिपिकली क्या करता है, वो स्लिप लेता है, स्टॉक रजिस्टर पे लिखता है या एक्सेल पे लिखता है या जो भी सिस्टम वो यूज कर रहा है वहां पे लिखता है, वो मटेरियल निकाल के दे देता है। उसका प्रोसेस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है एक्सेप्ट उसको वो रजिस्टर या एक्सेल पे करने की जगह यहाँ पे करना, रिड्यूस स्टॉक पे क्लिक करेगा, उसको जो भी जैसे लेट्स से निकल देना है, निकल सेलेक्ट किया,
कितनी क्वांटिटी देनी है वो यहाँ पे डाला। उसके बाद एडजस्टमेंट टाइप में अगर प्रोडक्शन के लिए जा रहा है तो वो यहाँ सेलेक्ट किया। जॉब नंबर इज वेरी क्रिटिकल ओवर हियर कि कमेंट में वो जॉब डालता है, ठीक है। वो डाल के यहाँ पे सेव करेगा। जितने भी आइटम्स है सारे आइटम्स डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं एक्सेल बना के। वो दो ऑप्शन आगे बना हुआ है, टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है, वो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। एज सुन एज दे विल सेव इट, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस निकल के अगेंस्ट में जाकर देखता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ इस आइटम को, तो इसकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो 100 आइटम प्रोडक्शन जॉब नंबर 1 2 3 के अगेंस्ट में इशू हुआ है। किस बंदे ने एंट्री की है वो नाम आ गया, किस डेट एंड टाइम पे हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पे आ गया। सो एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। और ये एक्सेल पे करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एक एंट्री दिन में कितनी बार वो आइटम इशू हो रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स पे हो रहा है, किस डेट एंड टाइम पे हुआ था, किस बंदे ने किया था, सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्लस नॉट ओनली दिस, इन केस ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं एक रिपोर्ट पे वापस जाता हूँ, दैट्स वेयर यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम कि स्टॉक एडजस्टमेंट की रिपोर्ट है मेरे पास। मैं इस पे जाता हूँ और आइटम करके जनरेट करता हूँ। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या होगा ना, आपको लेट्स से प्रोडक्शन साइकिल आपका 2 हफ्ते चल रहा है, तो 2 हफ्ते में कितने कितने मटेरियल कब कब दिए हैं उस सबका डिटेल यहाँ पे। जैसे जो जॉब नंबर लिखता हूँ, खाली जॉब नंबर लिखते ही इस जॉब के अगेंस्ट में क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, कितना मटेरियल इन हुआ है, कौन कौन सा मटेरियल इन आउट हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेस हुआ है क्या क्या वो भी दिया हुआ है, ऐड हुआ है क्या क्या वो भी दिया हुआ है, किस प्राइस पॉइंट पे हुआ है वो भी दिया हुआ है। ये फीफो के हिसाब से ले लेता है आपका। जब आप एडजस्ट कर रहे थे वहां पे लिखा हुआ था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी का मूवमेंट हुआ है, किस डेट एंड टाइम पे हुआ है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। सो डाउन द लाइन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन, तो वो भी निकाल सकते हो। आइटम कॉस्ट क्या था मेरा, नॉट द प्रोडक्शन कॉस्ट बट आरएमसी अगर मैं बोलता हूँ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, तो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। अगेन यू कैन डाउनलोड इट इन एक्सेल एंड क्रिएट अ पिवट ओवर देयर, सो दैट कैन बी डन। सिमिलरली जब मैं वापस इन्वेंट्री में जाता हूँ, अब आपका प्रोसेस कैसे, ये टू एंड फ्रो चल रहा होगा कि मटेरियल कुछ आ रहा होगा, प्रोडक्शन वाला लेके जा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। वंस एवरीथिंग इज डन, जो भी बचा हुआ मटेरियल है वो वापस आएगा, और आपका जो फिनिश गुड बना है उसकी एंट्री आएगी कि ये मेरा फिनिश गुड बना है। तो अगेन सिमिलरली लेट्स से मेरा ग्लोब बल्ब है, तो मैं ग्लोब बल्ब सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा मान लो फिनिश गुड है, ये 100 क्वांटिटी बन गया। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे सिमिलरली सेम जॉब नंबर वापस डाल देना है। ये डाल के सबमिट करता हूँ, मेरे जॉब नंबर वाइज उस प्रोडक्शन प्रोसेस में अपडेट होता है, मतलब मेरे पास उस रिपोर्ट में अपडेट हो जाएगा कि इस जॉब नंबर से ये चीज एडेड हुई। सिमिलरली जो भी दिन भर में जो आ रहा है जा रहा है, एवरीथिंग कैन बी एंटर्ड बाय एक्सेल अपलोड और मैनुअल एडजस्टमेंट, बोथ द ऑप्शंस आर देयर। वंस एवरीथिंग इज डन, दे कैन जस्ट गो बैक टू ट्रांजैक्शन। जो भी आपके स्टोर वाले जैसे फिनिश गुड मिलता है, दे कैन गो ओवर हियर, दे कैन अपडेट इट कि हाँ मेरे पास मटेरियल रेडी हो गया है। दे कैन पुट अ कमेंट ओवर हियर टू अकाउंट्स टीम और व्हिचएवर नेक्स्ट टीम इज, मतलब एसओपी के हिसाब से आपका जो एक्शनेबल है। लेट्स से मुझे रोहित को करना है, ये करके मैं सबमिट कर सकता हूँ। इन दिस केस रोहित कुलकर्णी को एक मेल चल जाएगा कि आपका ये इस ट्रांजैक्शन में ये हो गया। ही कैन कम ओवर हियर, ही कैन चेक द अकाउंट्स कि आपका परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है, डिलीवरी चार्ज बनाना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है। वन क्लिक गो है, लेट्स से मुझे टैक्स इनवॉइस बनाना है, एक क्लिक करूंगा मेरा टैक्स इनवॉइस बन जाएगा। यहाँ पे all the details will be fetched from the previous document। 97 पीस का स्टॉक था, ऑर्डर था, मैंने 100 पीस लेट्स से प्रोडक्शन किया है, जो भी एक्स अमाउंट प्रोड्यूस किया है, मैं यहाँ पे जस्ट सेव एंड सेंड करूंगा, मेरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, इनवॉइस बन जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स अगर मिसिंग होगी तो दैट कैन बी इनपुट एंटर्ड, अदरवाइज मैं इसको सेव एंड सेंड करके मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, आई गेट मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हियर, लाइक इसका डिस्पैच डिटेल डालना है मुझे, बारकोड नंबर डालना है, पैकेजिंग लिस्ट डालनी है, डिस्पैच डिटेल डालना है, ईवे बिल है, रिमाइंडर सेट करना है, ऑल दोस ऑप्शंस आर ओवर हियर, ठीक है। ये जैसे ही आप करते हो, लेट्स से आप डिस्पैच डिटेल डालते हैं, आपके यहीं पे डिस्पैच डिटेल्स दिखने लगती, आपके कस्टमर को भी मेल चल जाता कि इस ट्रक से, या ट्रक नंबर या फिर ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स, वो सब ऑटोमेटिकली मेल हो जाता है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर टिल नाउ, कि सेल्स का पूरा साइकिल या परचेस का पूरा साइकिल यहाँ पे चलेगा।
इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो ट्रांजैक्ट में इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ पेमेंट। अगर मैं पेमेंट की बात करूँ, लेट्स से मुझे डेली बेसिस पे देखना होता है किसका कितना ड्यूज है। मैं यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग देखता हूँ कि इसका कितना ड्यूज है। मैं इसका जस्ट नाम टाइप किया एंड ऑल द डिटेल्स आर ओवर हियर, किसका अमाउंट टू पे फाइनली कितना है, कितना था, अमाउंट पेड कितना है, सेट ऑफ कितना हुआ, एंड देन टोटल ड्यूज आज की डेट में कितना है, 13,71,000 का है। आई कैन डेफिनेटली हैव अ सॉरी आई कैन डेफिनेटली जनरेट अ कंपनी लेजर, डाउनलोड करके शेयर करना है, वो सब ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मुझे कुछ पेमेंट एंट्रीज करनी है तो आई कैन हैव मल्टीपल सेलेक्ट्स। लेट्स से मैं इस दोनों इनवॉइस के अगेंस्ट रख सकता हूँ, मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट रख सकता हूँ, मैं सिंगल इनवॉइस के अगेंस्ट भी पेमेंट लॉक कर सकता हूँ। इसके अगेंस्ट में मान लो मुझे इतना पेमेंट आ गया, पेमेंट डेट चूज की मैंने, चूज किया कि मेरे किसी पर्टिकुलर बैंक में आया है, चेक से आया है, रेफरेंस नंबर डाल के आई कैन जस्ट क्लिक ऑन लॉग पेमेंट। जैसे ही मैं लॉग पेमेंट करता हूँ उसका उतना पेमेंट लॉग हो जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो इतने में से इतना लॉग हो गया, 10 लाख रुपए का ड्यूज है। सो दैट गेट अपडेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके परचेज सेल्स के बिल्स या ये सब चीज थे। वेयर एज अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, आपके अकाउंटिंग में आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पेटी कैश हो गया या फिर आपका सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब कुछ भी इंक्लूड होता है। फॉर दैट व्हाट वी डू इज टिपिकली, आप ये समझो कि टैली इज समथिंग who have done a good job in terms of accounting, and most of the CAs in India specifically use tally for the accounting purpose, या फिर आपके जो अकाउंटेंट होते हैं वो भी tally प्रेफर करते हैं, and there is a reason, क्योंकि उनसे अच्छा किया है, we can't deny that. So what we typically do over here is, जो भी आपका परचेस सेल्स का इनवॉइसेस हैं या आपकी पेमेंट एंट्रीज हैं, वो सब आप यहाँ से डायरेक्टली टैली में भेज सकते हो। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू द डबल एंट्री। उसके लिए प्रोसेस क्या होता है वो मैं अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पे लेजर सेटिंग्स करके मॉड्यूल दिया हुआ है। मॉड्यूल के अंदर एक पेज है जहाँ पे आप टैली के जो भी परचेज लेजर्स हैं, सेल्स लेजर हैं, ये वन टाइम एक्टिविटी है। एक बार अपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि टैली में जो भी नाम दिया हुआ है वो वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आप ऐड परचेज लेजर करके उस पर सेव कर सकते हो। ये एक बार आप कर देते हो, उसके बाद आपका यहाँ डॉक्यूमेंट अप्रूवल पेज पे आते हो, वॉट एवर डॉक्यूमेंट यू वॉन्ट टू सेंड टू टैली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बल्क अप्रूव कर सकते हो, यहाँ पे परचेज का करना है, सेल्स का करना है, सिलेक्टेड इनवॉइस करना है, वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। वंस डन, यहाँ पे टैली की रिपोर्ट्स, आपको कौन सा डेटा मूव करना है वो आप यहाँ से डाउनलोड करते हो। आपके बैकग्राउंड में टैली खुला होना चाहिए। आप यहीं क्रोम पे ही जाके, हमारा एक एक्सटेंशन है उस पर क्लिक करते हो, यहाँ 2-3 चीजें वो पूछता है। एक वो बोलता है ट्रांजैक्ट का लॉगिन करने, दूसरा वो जो भी आपका ट्रांजैक्ट का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो डाल दो। आप टैली प्राइम यूज कर रहे हो या टैली ERP9 यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर टैली प्राइम नहीं कर रहे हो, नो कर दो, वो टैली ERP9 हो जाएगा। लोकल होस्ट है, टैली क्लाउड है, क्या है वो आप डाल दो, पोर्ट नंबर डाल सकते हो। सो दीज आर वन टाइम सेटअप, एक बार कर दिया वो सिस्टम उसको रिमेंबर करता है। उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लोगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है इसलिए मैं आई वोंट बी एबल टू शो यू, अदरवाइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आप सेलेक्ट करते हो आपका यहाँ पे सेंड बटन आता है, जस्ट क्लिक ऑन सेंड, डेटा विल बी ट्रांसफर सीमलेसली फ्रॉम हेयर टू टैली। उसमें सारे चेक्स लगे हुए हैं जो भी आप सोच रहे हो कि उसका लेजर ने मैच किया कि नहीं किया, आइटम ने मैच किया कि नहीं किया, सही लेजर में जाएगा कि नहीं, ये सारा कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं। इन केस ऑफ एनी मिसमैच, लेट्स से वहां पे आपके एक कोई क्लाइंट है जिसका नाम आपने ABC इंडिया रखा हुआ है, तो आपने ट्रांजैक्ट में ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डाल दिया, वो सिस्टम वहां पे एरर दिखा देगा कि उसको ट्रांजैक्ट टैली में ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं मिला। इफ यू वांट टू मैप इट विद ABC इंडिया, आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो कि टैली में कौन से नाम से सिलेक्ट सर्च करें, वो सर्च करके वहां पे अपडेट कर देगा। सो इनके वो इनिशियल आपका 15-20 दिन जब आप टैली इंटीग्रेशन करते हो तब ये सारे इश्यूज आते हैं, उसके बाद ये सारी चीज सॉल्व हो जाती है। अगर आपने सेम डाला हुआ है नाम तो कहीं पे भी कोई मिसमैच नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। So yeah, this is about what Transact does, how it helps you, everything. इसके अलावा भी और भी मॉड्यूल्स हैं, what we can see over here. एक मैं जिस दिखा देता हूँ कि पेड वर्जन में क्या क्या ऑप्शन होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। So I'll quickly jump to the production module. इन द प्रोडक्शन यहाँ पे आपके सारे जो भी वर्क ऑर्डर्स बनते हैं, बेसिकली जो भी आपने ऑर्डर कंफर्मेशन बनाया है उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। उसके अलावा सॉरी उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे वर्क ऑर्डर में आ जाती है। जैसे मैंने 97 क्वांटिटी का भी बनाया था वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाता है। इसके अलावा आप बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हो, दैट इज समथिंग
if I'll just show you one of the bill of material, ये आपको दिखाता है कि एक फिनिश गुड बनाने के लिए, वन क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड के लिए मुझे क्या क्या आइटम लगेगा. इट कुड बी पॉसिबल, जैसे इसको बनाने के लिए मुझे बटरफ्लाई वर्ल्ड लग रहा है, और बटरफ्लाई वर्ल्ड बनाने के लिए मुझे एसेसरीज एंड पैनल बॉक्स लग रहा है. डोंट गेट इनटू द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ये डमी डेटा डाला हुआ है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मैं और सिंपल अंडरस्टैंडिंग दूं तो एक पेन बनाने के लिए मुझे रिफिल लगता है, वेयर एज रिफिल बनाने के लिए भी मुझे और प्लास्टिक, इंक, ये सब चीजें लग सकती हैं. तो वो मल्टी लेवल बॉम्ब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. यहाँ पे आप बॉम्ब कॉस्ट देख सकते हो. व्हेन आई से बॉम्ब कॉस्ट, वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग: एवरेज प्राइसिंग, फीफो प्राइसिंग, लेटेस्ट लास्ट परचेज प्राइसिंग एंड डिफॉल्ट प्राइस, जो आपने इन्वेंट्री में डाल रखा है. वो आपको सिंपली सिस्टम कैलकुलेट करके दिखा देता है कि हर आइटम के कॉस्ट के हिसाब से आपका ओवरऑल एक यूनिट का कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना पड़ रहा है. तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड. इसके अलावा पेड वर्जन में जो दूसरे ऑप्शन दिखते हैं वो होता है आपका सब कॉन्ट्रैक्ट. सब कॉन्ट्रैक्ट में जब आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर को अपना मटेरियल भेजते हो फॉर सम काइंड ऑफ जॉब वर्क और समथिंग, दैट कैन बी हैंडल्ड. थर्ड थिंग इज रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग में लेट्स से मुझे एक ऑर्डर आया है, मैं अभी के ऑर्डर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ. लेट्स से कि ऑर्डर नंबर 46 आया है. इसको सर्व करने के लिए मुझे क्या क्या आइटम चाहिए, क्या लगेगा, जो इन जनरल हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको दे देता है कि आपके स्टॉक में कितना है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. तो एक second. इसका तो इसका जैसे निकल, गैस्केट, पैनल बॉक्स, जो भी आइटम्स लगना है इसके, वो सारा कुछ यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाता है कि कितना कितना आइटम लगेगा, कितना आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लॉक है, कितना फाइनली आपको ऑर्डर करना है. वो डिटेल टू बी ऑर्डर्ड क्वांटिटी में आपको यहाँ पे दिख जाती है कि फाइनली कितना ऑर्डर करना है. तो ये पूरा सिस्टम कैलकुलेट करके दे देता है. सो दिस इज वन अनदर थिंग व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर. तो ये तीनों पेड वर्जन में आते हैं, और बाकी सब कुछ जो मैंने दिखाया वो दोज आर द फ्री थिंग्स. अभी मैं एक बार क्वेश्चंस ले लेता हूँ. इज देयर एनी ऑप्शन टू मेंशन द कस्टमर मटेरियल कोड. कस्टमर मटेरियल कोड जो आपने पूछा है कि कैसे मेंशन करेंगे, आई जस्ट जंप टू द इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में अगर आप देखोगे काउंटर पार्टी कोड करके एक ऑप्शन है, ये आप डाल सकते हो, या फिर अदर एक्शन में जब आप यहाँ पे इन्वेंट्री में जाते हो, वेंडर मैपिंग करके एक ऑप्शन है. वेंडर मैपिंग में लेट्स से कि एक कोई प्रोडक्ट है, मेरा ग्रे पेंट है. ग्रे पेंट में जब एबीसी इंडिया को बेचता हूँ, वो बोलते हैं इसको G1 बोल के कोड लिखते हैं. वेयर एज जब मैं XYZ इंडिया को बेचता हूँ, वो मुझे P1 बोलता है. तो आई कैन डिफाइन दैट. मैं यहाँ पे एक फाइल टेम्पलेट डाउनलोड कर सकता हूँ. मैं कंपनी का नाम डालूंगा कि किस कंपनी के लिए कौन सा आइटम कोड को मैं, वो क्या बोलते हैं, काउंटर पार्टी कोड क्या है, वो यहाँ पे डाल सकता हूँ. हाउ इट हेल्प्स यू कि जब आप डाउन द लाइन उसके लिए ऑर्डर कंफर्मेशन बनाओगे या फिर परचेज ऑर्डर बनाओगे, वहां पे काउंटर पार्टी कोड भी लिखा हुआ आ जाएगा. यू विल सर्च विथ योर ओन कोड. आप वहां पे ग्रे पेन डालोगे और साथ में नीचे उसके ऑटोमेटिकली काउंटर पार्टी कोड लिखा हुआ आ जाएगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सर एक बार डेमो दिखा दीजिए ना प्लीज. आई हैव टू ऐड इट वंस. जस्ट गिव मी a minute. Just give me 1 minute. Just give me 1 second. तो मैंने फाइल में खाली वो नाम डाला है. मैं अदर एक्शंस में जाता हूँ, वेंडर मैपिंग में जाके.
तो काउंटर पार्टी कोड में 2 जगह अनडिफाइंड है, 2 जगह नाम डाल दिए मैंने। ठीक है, ये मैंने जैसे किसके लिए डाला है मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने जेपी इंटरप्राइजेस के लिए डाई कलर पिगमेंट 2 के लिए एक नाम डाला है, जेपी इंटरप्राइजेस। जेपी इंटरप्राइजेस सेलेक्ट करता हूँ, डाई कलर 2 के लिए सेलेक्ट किया मैंने, कंट्री डाली, सेव ड्राफ्ट। सेव ड्राफ्ट करता हूँ जस्ट टू शो यू। आप यहाँ पे देखो काउंटर पार्टी कोड में ABC1 अपने आप आ गया। ठीक है, यही सेम अगर मैं सेम प्रोडक्ट किसी और कंपनी के साथ कोई और कोड डालता तो उसका जब डॉक्यूमेंट बनाता तो उसमें वो आ जाता। ये ऑर्डर कंफर्मेशन जब बना रहे हो उस टाइम पे ये शो नहीं करेगा कहीं पे काउंटर पार्टी कोड? सेम ही चीज है ना, इस केस में मैंने परचेज ऑर्डर लिया है, अगर ये मेरा बायर होता और बायर ये सेलिंग प्रोडक्ट होता तो वहां पे दिखा देते। आप मैनुअली भी डाल सकते हो, ऑल द ऑप्शंस आर देयर। अगर ये आपको ड्राफ्ट करने के बाद ही आ रहा है, ड्राफ्ट करने के पहले जहाँ पे ऑर्डर एंट्री कर रहे हैं वहां पे नहीं आ सकता है ये? एक सेकंड, यहाँ पे जैसे काउंटर पार्टी कोड का कॉलम आ जाता है, वो मैंने सेव करके दिखाया था आपको, अदरवाइज काउंटर पार्टी कोड का ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली कोड सर्च करेंगे तो डायरेक्टली हम वो आइटम देख सकते हैं, इससे सर्च नहीं होगा। यहाँ सर्च नहीं होगा। नहीं, ठीक है, सर्च आपका हमेशा आपके आपके कोड से होता है, सामने वाले के कोड से नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी क्या है कि काउंटर पार्टी का कोड आ जाता है, जैसे 1 साल बाद 2 साल बाद वो लोग अपना कोड दे देते हैं, बोलते हैं इस पे कोड करो, तो उसका हिस्ट्री देखना रहता है, तो फिर कैसे देख पाएंगे कि इस कोड में? के लिए आप रिपोर्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो ना, आपकी रिपोर्ट्स में तो रहेगा ही कहीं ना कहीं। आपने क्या तो सेल्स की रिपोर्ट निकालोगे उसमें काउंटर पार्टी कोड रहेगा, आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट आप जाके यहाँ पे इन्वेंट्री में ही चेक कर सकते हो ना, इन्वेंट्री का ये पूरा फाइल ही डाउनलोड कर सकते हो, जो वेंडर मैपिंग का फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसमें आप सर्च कर लो कि कौन से आइटम से एसोसिएटेड है, ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है। या फिर आप अपना ये ऑर्डर कंफर्मेशन पे रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, उसमें आ जाएगा। हाउ ट्रांजैक्ट बेनिफिट्स फॉर रेस्टोरेंट्स, एग्जैक्टली रेस्टोरेंट में आपका क्या इशू आ रहा है, कैसे कर रहा है। आई डोंट सी अ डायरेक्ट रिलेशन विद द रेस्टोरेंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, हाउएवर आपका जो परचेज हो रहा है उसकी एंट्रीज आप मैनेज कर सकते हो, वट एवर रॉ मटेरियल्स यू आर परचेजिंग, लाइक वी हैव कस्टमर्स, I won't say the name, but many restaurants startups are using Transact for to manage their inventory, रॉ मटेरियल जो भी उनका परचेज होता है वो हाँ टिपिकली हाँ, हमारा सेल्स भी है और कफे भी है, बोथ है, इसीलिए मैं जानना चाहती थी। नहीं तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आप मुझे बोलोगे सेल्स के लिए मैनेज हो रहा है तो नहीं, सेल्स के लिए इट इज नॉट अ गुड फिट। सेल्स के लिए रेस्टोरेंट के लिए बेटर टूल्स आते हैं जो कि रेस्टोरेंट स्पेसिफिक होते हैं, आप वो यूज करो जो बिलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। हाउएवर अगर आपको पूरा इन्वेंट्री लूप मैनेज करना है, आपको देखना है कि मेरा ऑर्डर के लिए जैसे जितने भी आइटम्स आप यहाँ पे परचेज के डिफाइन कर सकते हो, वट एवर रॉ मटेरियल्स यू आर परचेजिंग, उसके हिसाब से डेली जितना कंजम्पशन हो रहा है उसका आप रिड्यूस स्टॉक कर सकते हो, ऐड या रिड्यूस स्टॉक कर सकते हो, दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी मैनेज्ड। इसके अलावा आप यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि कोई एक रॉ मटेरियल है जो मैं 50 kg से नीचे जाता है तो मुझे रीऑर्डर करना है, तो आप यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल डिफाइन करके रख सकते हो, उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हो रेगुलरली, उसके डैशबोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से ऐसे हैं जो रीऑर्डर लेवल पे आ गए, तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 20% जब होता है तो ये रीऑर्डर लेवल पे दिखाने लगता है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हेल्प आपको मिल सकती है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आपका एक्सेस स्टॉक हो रहा है कोई चीज का तो वो आप रख सकते हो यहाँ पे, दोज थिंग्स कैन बी मैनेज्ड, बट अगर आप मुझे बोलोगे फुल फ्लेज रेस्टोरेंट मैनेज करने के लिए, नो आई वोंट सजेस्ट यू। ओके, थैंक यू। एक चीज और आप कर सकते हो, अगर आप बिल ऑफ मटेरियल जैसे लेट्स से आई एम टेकिंग अ टिपिकल एग्जांपल कि मुझे पनीर बटर मसाला बनाना है, आई कैन डिफाइन अ रेसिपी ओवर हियर फॉर अ पनीर बटर मसाला, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन की थी, जैसे सांभर मसाला का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हाँ बना हुआ है, तो उसका रेसिपी डिफाइन करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास इस आइटम को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है,
और अच्छा उसकी कॉस्टिंग क्या आती है वो मैं यहाँ पे इजिली देख सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डर नंबर टेबल, अगर कुछ टेबल पे ऑर्डर आया है वहां से वो वो उसके लिए भी काम नहीं आएगा, दैट्स नॉट ओके। आई वोंट गिव यू अ फॉल्स। ओके, आई अंडरस्टैंड, ओके। ठीक है, PO automatically generated? No, PO cannot be generated automatically over here. You have to go there and generate. आपका ऑलरेडी बना हुआ कोई PO है, so there are options to duplicate. जैसे मैं ये PO बनाया है, मेरे पास इसका कॉपी, सॉरी ये तो ड्राफ्ट पे है अभी, अगर कोई सेव एंड सेंड किया वो ऑर्डर है ऑलरेडी, मैं उसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। जैसे मैं ये PO बोलता हूँ, मुझे किसी और को भेजना है या सिमिलर आइटम के लिए वापस जो है कॉपी करने का ऑप्शन है, बट ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता है सिस्टम से। इनवर्ड एंट्री नहीं करके डायरेक्ट परचेज एंट्री कर सकते हैं। डायरेक्टली परचेज एंट्री, इनवर्ड एंट्री इज सेकंड ऑप्शन। जैसे आप PO बनाते हो, PO बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे इनवर्ड का ऑप्शन आता है, जिससे आपका स्टॉक मूवमेंट होता है। अगर आपको PO ही नहीं बनाना है तो सिस्टम वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट। और अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि यार पहले PO क्यों बनाए, या PO का क्या यूज केस है, या एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है आपको, तो इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप PO नहीं बना रहे हो तो आपको अगर कंपनी को स्ट्रीमलाइन करना है, आपने सिस्टम पे ये नहीं डाला है कि मेरा कितना ऑर्डर गया हुआ है, कब तक आने वाला है, तो आप उस पर कभी चेक नहीं रख सकते हो। हमेशा आपका ऑर्डर डिले होने के चांसेस हैं, जिसपे अपना फॉलो अप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई एंट्री नहीं है। प्लस PO बनाने में भी उतना ही एफर्ट है जितना आपको इनवॉइस बनाने में बाकी जगह लगेगा। आप यहाँ जैसे पे देखो, पीओ बनाना है, बट पीओ बनाने के बाद क्या है कि अभी एक बार मटेरियल इन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फिर परचेस इनवाइस का एंट्री करना होगा। तो राइट, डायरेक्ट परचेस इनवाइस अगर एंट्री करेंगे तो साथ साथ मटेरियल इन्वर्ट नहीं भी नहीं नहीं, दोनों दो चीज होता है ना। हो सकता है इनवॉइस पहले आ गई हो आपके पास, हो सकता है इनवॉइस बाद में आई हो आपके पास। मटेरियल का मूवमेंट अलग होता है, इनवॉइस का मूवमेंट। आप ये बताओ कि एफर्ट वाइज अगर आप बोलोगे तो एक ही क्लिक तो करना है मुझे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे करना चाह सर। अगर इनवर्ट का, क्लिक तो एक ही करना है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगना है। हाँ, जब आपका टाइम नहीं लगना, सब कुछ नहीं लगना, तो सिस्टमैटिक ढंग से तो ये मान लो कि आपके पास मटेरियल आ गया है और इनवॉइस नहीं आई है, तो आप एंट्री कैसे करोगे? ये तो समझ पॉसिबल गया है सर, कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकली, है वो प्रोसेस प्रॉपर वे में आना चाहिए। राइट। और ये आप आज कर रहे हो शायद क्योंकि आप खुद ही ये एंट्री करो। मुझे नहीं पता आपकी टीम कितनी बड़ी है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आप खुद ही एंट्री कर रहे हो, इसलिए आपको ये लग रहा है कि 2 स्टेप करना पड़ता है। जब आपकी टीम में 10 लोग होंगे ना, और उस समय जब आपको चेक लगाना होगा ना, अगर आप ये सब चीजें हटा दोगे सिस्टम से, तो वो चेक लगाना बहुत मुश्किल होगा। तो नहीं सकते, पीओ तो मस्ट है हम लोग के लिए। हाँ, कैन रिड्यूस द स्टॉक थ्रू बारकोड। बारकोड के थ्रू स्टॉक एग्जैक्टली रिड्यूस नहीं होता है। सी, दो चीजें होती हैं आपका। एक होता है मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, दैट विल ऑलवेज हैपन विद रिस्पेक्ट टू सम डॉक्यूमेंट। लेट्स से मैनुअल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप इनवॉइस बना रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्शन में दे रहे हैं। ये 3 इशुएंस के तरीके होते हैं। बारकोड इज एन एडेड फीचर ऑन टॉप ऑफ दैट। जैसे कि मैंने कोई एक बैच का मटेरियल दिया है प्रोडक्शन के लिए, तो मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ कि 10 पीस जो आइटम गया था उसमें 3 पीस बैच 1 का था, 4 पीस बैच 2 का था, और बचा हुआ 3 पीस बैच 3 का था। वो ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। उसके हिसाब से आप इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे बारकोड्स के ऑप्शन जो दिए हुए हैं, यहाँ पे आप उसका डिटेल देख सकते हो कि कौन से बैच का क्या मूवमेंट हुआ है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। वो ऑप्शन है। बारकोड के थ्रू रिड्यूस या ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। I want to understand if Transact is helpful for us. Let me know when I can ask. Yeah, please, Mr. Ankit, you can ask me. So, my quick question was that I wanted to understand. I've recently subscribed to Transact, so I was exploring a couple of options. Now, our business is kind of just wanted to understand on that. So let me explain my kind of product and how we deal. Then let me know if that's appropriate आप for. मुझे खाली आप प्रोडक्ट बताओ ना अपना, कि आपका प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है। We are dealers for Windows solutions. Okay. We purchase manufactured windows and then deliver it to the client. Now the quotation is also made not in this kind of application, but in Excel, let's say. ठीक है, I have to make sure that if an inquiry is generated, I have timely submitted the quotation to that. And if submitted, what's the conversion, how it converted, how much I'll tell duration
I got an idea. So typically विंडो जो भी है आपका, आप उसको रेडीमेड विंडो लेके आप उसको सेल कर रहे हो, या फिर कस्टमाइज विंडो है जिसको आप सेल कर रहे हो थर्ड पार्टी को, कस्टमर्स को अपने उसका जो भी कोटेशन आया है कोटेशन पे रिएक्ट करना है, एंड देन कन्वर्जन देखना, उसके बाद उसका इनवॉइसिंग करना, इनवॉइसिंग करने के बाद आपका पेमेंट आया है कि नहीं ये फॉलो अप करना, अगर या फिर आप जो परचेस कर रहे हो उस परचेस का अपडेट रखना कि कितना परचेस किया है, उसका पेमेंट हुआ कि नहीं. These things can be done on Transact, whatever we have shown till now. I don't know, I guess you have joined a little late on the session. Yes. तो वो पूरे सेशन में हमने वही दिखाया है कि कैसे ये सारी चीजें की जाएंगी. What I'll do is I'll just share the recorded session with you. ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं उसका वीडियो भेज दूंगा, आप एक बार गो थ्रू कर लेना. अगर कोई भी डाउट हो तो यू हैव एन ऑप्शन टू रेज अ चैट और समथिंग ओवर हियर. आप यहाँ पे चैट पे रेज कर सकते हो कि आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई. टिपिकली यही चीज को पूरा सेशन में हमने लास्ट 1 आवर में एक्सप्लेन किया. So I was running late, so I joined late. Not a problem. I'll go through the recorded session please. or YouTube videos or anything else if available. I'll go to that. Everything is available. I'll just show you कि let's chat पे आप chat raise कर सकते हो. FAQs यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे show more categories करते हो तो different type of categories दी हुई है, module wise दिया हुआ है, हर module का अपना अपना category है जिसके अंदर collections दिए हुए हैं कि आपको जो देखना है. इसके अलावा how to manage sales transaction, purchase transaction, setup profile कैसे करना है, inventory कैसे manage करना है, इन सब के अंदर अगर आप जाते हो तो different videos दिए हुए हैं. तो ऑलमोस्ट 500 से 600 वीडियोस प्लस सिस्टम पे डाले हुए हैं जो आप देख सकते हो, या फिर आप यहीं पे अलग टैब पे help.letstransact.com पे जाते हो तो यहाँ पे भी ये सारे दिए हुए. जैसे मुझे कोई भी चीज सर्च करना है, आई कैन सर्च फॉर दैट. सो दोस थिंग्स आर देयर. बट अगर ये भी सर्च करने में दिक्कत हो, आप बस चैट पे यहाँ पे रेज कर दो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, दे विल हेल्प यू इमीडिएटली विद इन अ मिनट. Can I quickly see the options to manage the inquiries? तो यहीं पे कोटेशन मॉड्यूल है. कोटेशन मॉड्यूल पे इंक्वायरी जो भी आपकी आई है, यहाँ कोटेशन से शुरू होता है टिपिकली. तो जो भी इंक्वायरी आई है वो आप ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हो. अगर आपको अभी इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है, अगर इमीडिएट रिएक्ट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट डॉक्यूमेंट कर सकते हो. इंक्वायरी कैन बी फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन. आपका हो सकता है ईमेल से आ रहा हो सकता है फोन पे आया हो, इंडिया में जैसे अलग पोर्टल से आया हो. सो दोज इंटीग्रेशंस आर नॉट देयर. ऐसा नहीं है कि वहां से सब इंडिकेट करके यहाँ पे डेटा आ जाएगा, वो नहीं होता है. साई, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा. ये कोटेशन तो हम तब शेयर करेंगे कस्टमर के साथ जब हम कोई लीड क्रिएट करें. So whatever inquiry you receive, उसके अगेंस्ट में आप अगर वो मटेरियल बेचते हो, that is anyway a lead for you, right? अगर आप वो मटेरियल बेचते नहीं हो, मैं मान लो पेन विंडो बेचता हूँ जैसे मिस्टर अंकित का है, अब कोई मेरे पास आ रहा है कि मुझे ऑरेंज खरीदना है, तो मैं शायद उसको दैट इज नॉट अ लीड फॉर मी. बट एनीथिंग अबाउट अगर वो विंडो खरीदने आ रहा है तो मेरे लिए लीड है, राइट? एक्चुअली क्या ना अंकित जी, मैं अभी जो है इधर मैं फर्नीचर्स मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग्स में लाइंस में हूँ, राइट? और मेरे पे अभी तक जितना भी मैंने सेशन देखा है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुछ मिसिंग है जो अभी करंट में हम काम कर रहे हैं. ओके. तो जैसे कि आप हमने कोटेशन बनाया, ठीक है, कोटेशन हम भी बना रहे हैं, राइट? फिर हम उसके बाद फिर हम अब सीधा पीओ पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जब तक एसओ बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट का हमारा क्या एस्टिमेशन बनता है. एस्टिमेशन आप पहले बनाते हो तो डिफरेंस है. द वे यू, ये ऐसा नहीं है सिस्टम पे हो नहीं रहा है. डिफरेंस क्या होता है कि अब जैसे मैंने अभी जो दिखाया आपको प्रीमियम वर्जन का दिखाया, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर इस पे जाते हो और जो प्रोडक्शन बोल रहे हो उसका लिए आप बिल ऑफ मटेरियल बनाते हो. बिल ऑफ मटेरियल इज टेंटेटिव. पहले आप टेंटेटिव बनाते हो कि रफली इतने इतने आइटम लगेंगे, एंड देन उसका एक कॉस्ट निकालते हो. उस कॉस्ट के पे आप अपना मार्जिन, एडिशनल लेबर कॉस्ट, एडिशनल 20% जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड करके आपका एक एस्टिमेशन आता है. ठीक है, वो एस्टिमेशन के हिसाब से आप उसका कोटेशन भेजते हो. ठीक है, कोटेशन भेजने के बाद आपकी जब कंफर्म होता है तब आप उसको कन्वर्ट करते हो ऑर्डर में कि ये कंफर्म्ड ऑर्डर है. एंड उसके बाद उसका एक्चुअल डिजाइन या एक्चुअल जो बिल ऑफ मटेरियल बनना है, क्योंकि पहले आपने एक अजम्पशंस लिए होंगे कि यार इतना इतना आइटम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप उसको कंफर्म करते हो कि हाँ ये एक्चुअल बिल ऑफ मटेरियल है. सो दोस ऑल द ऑप्शंस आर गिवन ओवर हियर कि आप प्रोडक्शन में जाके इसको बॉम्ब को ड्राफ्ट करके रख सकते हो कि ड्राफ्ट्स में सेव कर लिया. अब जैसे कि अभी आप जैसे हम अभी ऑफिस में बैठे हैं, राइट? अब ऑफिस में जैसे मेरा फर्नीचर का मेरी कंपनी है, तो फर्नीचर में हम जैसे कि हम चेयर पर बैठे हुए हैं. अब हम किसी क्लाइंट ने कहा मुझे एक चेयर चाहिए, राइट? तब हम बॉम्ब तैयार करते हैं. तो उस बॉम्ब में उस चेयर के जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है
हम उस कॉम्प में इंक्लूड करते हैं, लाइक जैसे हैंडल है, हाइड्रोलिक है, राइट और सीट्स है, हेड है, बैक है। तो इस राइट तरह का हम एक बॉम्ब रिकॉर्ड तैयार करते हैं, पर बॉम्ब में सिर्फ हम फिजिकली मटेरियल और को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसके बॉम्ब में हम प्राइस इंक्लूड करते हैं। बॉम्बे में प्राइस इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं लिस्ट ही बना रहा हूँ बिल ऑफ मटेरियल में। हाँ, प्राइस इज एन एडिशनल फीचर विच यू गेट, कि आपको यहाँ पे कॉस्ट देखना है इसका तो वो कॉस्ट देख सकते हो, आपको नहीं देखना है नहीं देख सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन। नहीं कॉस्ट तो हम देख ही रहे हैं, कॉस्ट तो बहुत अच्छी आ रही है, कॉस्ट तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया लास्ट परचेज भी हम यहाँ देख सकते हैं। राइट अगर हमने लास्ट परचेज 100 रुपीज की है, उसी वेंडर से मैं दोबारा मेटेरियल खरीद रहा हूँ, मेरे को 110 रुपए का दे रहा है, तो वो मेरे को रिफ्लेक्ट करेगा, भाई आपने 10 रुपए एक्सेस ले रहे हैं। ट्रू। ये चीज तो है, यहाँ पे तो बहुत कुछ ही चीजें से है जो कि मैच कर रही हैं, और कुछ चीजें ऐसी है जो शायद इस ERP में कुछ प्रेजेंटेशन जो दिया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट में है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है। तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ एक चीज कि हाँ। सी इट इज दैट्स वेयर वी हैव केप्ट, सो आवर एजेंडा इज नॉट टू सेल द प्लेटफॉर्म। मैं आपको बेचना चाहूँ तो सी, मैंने अभी तक पूरे सेशन में कभी भी बेचने की या इसकी बात नहीं की। मैंने हमेशा, अब मैं बताता हूँ, मैं हम लोग का ऐसा कंपनी DNA ही इज ऑलवेज कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। सिंस इट इज अ प्रीमियम सॉफ्टवेयर, आई ऑलवेज सजेस्ट एनी ऑफ माई कस्टमर कि आप पहले सिस्टम को यूज करके अपना एक ऑर्डर उठाओ या अपना एक परचेस का फ्लो उठाओ, उसको पूरा यहाँ पे रेप्लिकेट, जो ऑलरेडी हो चुका हो, लेट्स से पुराना प्रोजेक्ट हो, आप वो प्रोजेक्ट उठा लो, उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करके देखो, देन यू विल कम अप विद एक्चुअल क्वेरीज कि यार ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही, ये वाला बिट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे अभी भी क्या हुआ कि जैसे आपने एक प्रोसेस बताया मुझे कि ये प्रोसेस हो रहा है, मैं भी आपको एक ब्रोकन तरीके से बता दिया, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। मैं जब आप रन करोगे ना तो आपको एक्चुअली दिखेगा कि यार ये वाला प्रॉब्लम मुझे नहीं सॉल्व हो रहा है या ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। देन इन दैट केस आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन अ बेटर वे। उसके बाद अगर आप वो चैट ट्रेस करते हो या मेरे पास कनेक्ट करते हो तो मैं आपको बेटर दिखा पाऊंगा कि अच्छा यार ये वाला प्रॉब्लम मैं करूंगा ही नहीं, या सिस्टम पे कर सकते हैं, डिफरेंट वे है करने का, वो मैं तब बता पाऊंगा। बिल्कुल, आपका जिस तरह का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिस तरह का आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, कि जी मेरा जो इश्यूज है वो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, नाइस। बस हाँ, बस प्रॉब्लम यह है कि बस थोड़ा सा आपको थोड़ा एफर्ट और मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सो आई टेल यू कि दिस, तो आप पहले एक बार वो चेक कर लो कि आपका क्या क्या चीजें हैं, मैं लिस्ट देख डाउन लिया कर। सर, मैंने शुरू से आपके पूरा लिस्ट अच्छा सेशन में देख लिया मैंने कि मेरे को कहाँ कहाँ आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो एक CRM में हेल्प की पड़ेगी, अकाउंट्स आपने मुझे नहीं आता है ज्यादा, इसलिए मैं अकाउंट्स में इन्वॉल्व नहीं होता नहीं, हूँ। अकाउंटिंग में करता भी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी, अगर आपने सुना होगा, मैंने इस कॉल पे यही बताया था कि वी आर नॉट अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वी आर ट्रांजैक्शनल अकाउंटिंग जो होती है वो करते हैं। जो आपका सेल्स परचेज हो रहा है, उसके अलावा बाकी चीजें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके यहाँ पे नहीं होते हैं, वो आपके टैली पे ही होते हैं। यहाँ से डेटा हम टैली में फ्लो कर देते हैं। इसमें इंटीग्रेशन है हमारा जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह के साथ? नहीं नहीं तो कैसे फिर हम इसको, अगर हम ऑर्डर्स को हमारा फ्लिपकार्ट में आ रहा तो हम कैसे इसको नहीं, लेकर तो ये आई गेस देयर इज अ मिसमैच इन द फिटमेंट की वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये विदाउट API का हम नहीं करेंगे ही नहीं, हाँ होगा ही नहीं। अभी तो नहीं है सिस्टम पे। अच्छा, मैं कुछ भी फॉल्स कमिटमेंट में कभी बिलीव नहीं करता कि मैं 6 महीने में कर दूंगा, 2 महीने में कर दूंगा। जो है मैं उस पर ही बात करता हूँ हमेशा कि ये नहीं, चीज है, सिस्टम पे ये नहीं है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। राइट राइट राइट। मैं आपको फेक प्रॉमिस करके जबरदस्ती ले आऊँ, आप 4 दिन बाद मुझे बोल रहे हो कि यार ये अखिल ने बोला था और नहीं करते हैं, सिस्टम बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं। मैं जो करता हूँ मैं उस पर कमिटमेंट देता हूँ हमेशा। ठीक है, तो मैंने ईमेल का भी सुविधा देखा, SMS का भी देखा, और आपका व्हाट्सएप पे भी गया है, तो ये सब चीज मैंने नोटिस किया है इस पे, और बहुत डीप में समझा है इसको। नाइस बस नाइस। और बस थोड़ा बहुत की जो मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको एक मेल पे ड्राफ्ट कर दूंगा कि चलेगा। आप कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं। अब बेस्ट वे और फास्टेस्ट वे आई वुड सजेस्ट, जो मैंने चैट का ऑप्शन बोला है ना, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वहां लिख के डाल दो, डेफिनेटली इट विल बी डिस्कस्ड। क्योंकि उसका जब भी आप चैट ट्रेस करते हो ना, उसकी टिकटिंग बनती है हमारे एंड पे, और टिकट का SLA होता है डिफाइंड कि अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं गया है, एवरीवन इज आंसरेबल टू दैट। मेल हाई चांस है कि मिस हो सकता है, मैं मेल पे अश्योरिटी नहीं रखता, लेकिन अगर आपने चैट ट्रेस किया है, एक भी चैट हमारी मिस नहीं होती, दैट इज समथिंग वी क्लेम। तो नहीं, अगर आप यहाँ पे जो मैंने सिस्टम पे दिखाया, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको कोई सजेशंस है जो भी है, आप यहाँ चैट पे डाल दो। एवरी ईच एंड एवरी चैट इज मॉनिटर्ड,
कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसका टिकट ट्रेस होगा। अगर वो वहाँ पे, अगर आप फीचर रिक्वेस्ट भी दे रहे हो कि ये फीचर होना चाहिए सिस्टम पे, आप सजेशंस दे रहे हो, वो भी यहाँ पे उसका भी टिकट ट्रेस होगा। यू कैन, दे विल शेयर द टिकट नंबर, आपके मेल पे भी अपडेट आएगा। हम उस पर कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड टू यू। मेल देयर आर हाई चांसेस कि मिस हो जाए, तो बेस्ट वे टू रीच आउट टू टीम इज चैट। क्योंकि अगर वो इस पे अपडेट नहीं कर रहे हैं ना, एवरीवन इज आंसरेबल, द एंटायर टीम इज आंसरेबल टू यू। ठीक है सर। और एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा, अभी एक छोटा सा और मैं आपसे थोड़ा क्लियरिफिकेशन लेना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने एसओ से जब पीओ बनाया था, जी तो जो पीओ जो है वहाँ पे क्या ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है नहीं, कि हमारी मैनुअल बनाया था मैंने। मैनुअल है? क्योंकि देखिए सपोज क्या होता है कि हमारे पास जब हम बॉम्ब रेडी करते हैं, तो बॉम्ब काम कैसे करता है? बॉम्ब काम करता है लोएस्ट क्वांटिटी पे, हम्म, कि जो लो क्वांटिटी है उसके ऊपर बॉम्ब तैयार होता है, उस पर हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। राइट। राइट। तो अगर सपोज हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्शन करने में मुझे 5 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, 5 आइटम। उस 5 आइटम में 2 आइटम अवेलेबल है, 2 आइटम हमारे पास नहीं है। तो जी सिस्टम ऑटोमेटिकली उस 3 आइटम का पीआर जनरेट करके पीओ रेज़ कर देगा, और जो नहीं, ये वेंडर ट्रांजैक्ट नहीं होता है। ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक आपको एक करना पड़ेगा फिर, या नहीं, फिर आगे स्कोप में है ये? उसमें वो एज ऑफ नाउ इमीडिएट तो मैं फ्यूचर में नहीं देख रहा हूँ। डाउन हाँ, द लाइन इट कुड बी पॉसिबल। मैं उस पर कमिटमेंट, अगेन एज आई टोल्ड यू, मैं हाँ, कमिटमेंट नहीं देना चाहता। लेकिन क्यों नहीं देना चाहता, देयर आर मल्टीपल रीजंस। जब हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो ये बहुत सिंपल लग रहा है। जब आप इसकी इंटीग्रिटी में घुसोगे ना, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स व्हिच विल नीड टू बी टेकिंग केयर बिफोर बिल्डिंग दिस ऑटोमेशन। वहां पे आपका वो किसको भेजना है, उतना ही क्वांटिटी का भेजना है, मल्टीपल ऑर्डर्स है, किस किस ऑर्डर्स का सम करके भेजना है, वो ऑर्डर मुझे सर्व करना है नहीं करना है, अभी चाहिए नहीं चाहिए, किस डेट तक डिलीवरी चाहिए, प्राइस कैलकुलेशन चाहिए, किस सप्लायर्स को भेजता हूँ, मल्टीपल सप्लायर्स हो सकते हैं, मुझे वापस कोटेशन लेना, आरएफक्यू भेजना है कि पीओ भेजना है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड बिफोर क्रिएटिंग दैट ऑटोमेशन। जब मैं सुनता हूँ बहुत इजी लगता है कि हाँ यार ये माल नहीं है, मुझे तो चाहिए ही ना, मैं मंगाता ही हूँ, हमेशा ही मंगाता हूँ, इसी से मंगाता हूँ। लेकिन ये एक केस है जिस केस में आप ऐसा करते हो। There could be n number of cases which we need to be taking care before building this automation. That's the reason I'm telling you this is not something which you can expect from Transact in very near future. Long term, definitely something like this will be there. ओके। तो आप यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में क्या राउट मैपिंग वगैरह भी ऑटोमेटिकली है, या फिर हम राउट मैपिंग है या नहीं? Sorry, quotation के around? नहीं नहीं, सेल्स ऑर्डर, सपोज हम वन स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए मेटल मूवमेंट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन क्या सिस्टम में हम डेटा डाल के क्या ऑटोमेटिकली इसको राउट के थ्रू मूव कर सकते हैं, स्टेज के थ्रू, या फिर हम मैनुअल करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा डेटा? जैसे एक होता है कि ट्रांसपोर्टर से आपने जो भी ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है उसकी डिटेल डाल के मैंने एक अपने कस्टमर को भेजा, अब दैट अब इज वन थिंग। अब जैसे कि ट्रांसपोर्टर है, हमने ट्रांसपोर्टर को फोन किया, भाई आज हमारा मेटल लेकर के जाएगा। ट्रांसपोर्टर वो आया, अपनी गाड़ी लेकर माल लेके चला गया, ट्रांसपोर्टर का नाम पता और वो गाड़ी का नंबर वो डाल दिया, ठीक है, ये वहाँ हमारा मैनुअल है। ठीक है। अब होता क्या है कि हम अगर, मेरा एक ऑर्डर मुंबई जा रहा है, दिल्ली से मुंबई के लिए, सिस्टम क्या करता है कि ऑटोमेटिक एक राउट कोड क्रिएट करता है कि मुंबई के लिए सपोज MBST 4 डिजिट प्लस डिलीवरी नंबर, जो डिलीवरी लेके जाएगा वो डिलीवरी नंबर जनरेट होता है, और एक हमारा एक राउट कोड, उसको हम राउट कोड कहते हैं बेसिकली। नहीं, वो जनरेशन नहीं होता है यहाँ पे। नहीं होता है। नहीं होता। आपका जस्ट टू अंडरस्टैंड किस चीज का बिजनेस है आपने बताया था? फर्नीचर का B2C। B2C, हम B2B। So this kind of things is not available in Transact. ओके। अच्छा, if you guys don't have much of the questions left, actually this topic is already I have other people. एक रिक्वेस्ट और है आपसे, जी प्लीज। क्या इसका मुझे एक लॉगिन आईडी मिल सकता है क्या डेमो सर्वर के लिए, ताकि मैं एक बार स्टार्ट करूं? आप अपने सिस्टम पे ही यूज करके ट्राई कर सकते हो ना, मतलब डेमो का क्यों करना है? अगर आपको बाद में डेटा हटाना होगा, आपको दूसरी प्रोफाइल बनानी होगी, दैट इज आल्सो पॉसिबल। कैसे लॉगिन कर सकता हूं मैं? आप डायरेक्ट साइन अप कर सकते हो ना अपने एक अच्छा, डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं? फ्री सिस्टम है ना, लाइफ टाइम फ्री है। ओके, ठीक है। मैं आज सिस्टम का स्टडी करता हूं, और मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको चैट पे श्योर शेयर श्योर करता हूं, प्लीज। और देखते हैं कि हमारा मेरे इश्यूज जो हैं वो जी कितना रिजॉल्व हो सकता है। श्योर श्योर डेफिनेटली।
Could you send this I'll- video recording for me? I'll get it done. I'll Yeah, post this meeting. The recording will be shared. yeah, thank हेलो you. हेलो सर रिकॉर्डिंग हम लोग को मिल जाएगी। Recording will be shared to everyone. Don't worry. क्या? ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन है मेरा। हेलो जी प्लीज। हेलो, ये आपका परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का जैसे आपस में लिंकअप करना है, ऐसे कि हम लोग क्या होता है कि सेल्स ऑर्डर जो आता है हम लोग का कस्टमर से, उसको हम लोग ऑर्डर कंफर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उस आइटम के लिए पर्टिकुलर एक परचेस ऑर्डर रेज करते हैं जो हमारा वेंडर हम लोग को सप्लाई करेगा। जी ठीक है। तो अभी क्या है कि 2-4 ऑर्डर रहता है तब तक तो ट्रैक हो पाता है कि कौन सा ऑर्डर किसके लिए बुक किया है, बट ये नंबर्स ऑफ ऑर्डर जैसे 100-200 में चले जाएंगे तो कौन सा मटेरियल किसके लिए आ रहा है ये कैसे लिंक कर पाएंगे कि जो ये सेल्स ऑर्डर है इस ऑर्डर का कंफर्मेशन। डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता है क्योंकि क्या डिफरेंस अगेन होता है कि लेट्स से मुझे एक ऑर्डर आया, मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक बार मैं आपको म्यूट पे कर रहा हूँ, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है काफी। ओके हाँ, तो लेट्स से मेरा एक ऑर्डर आया एक पीस लैपटॉप का। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि मैं अपने सप्लायर को एक ही पीस मंगाऊंगा। हो सकता है मैं सप्लायर से 5 पीस मंगा रहा हूँ या 10 पीस मंगा रहा हूँ। ऐसे केसेस भी आते हैं क्योंकि जितना ऑर्डर है उतना ही मंगाना, या फिर अगर कोई छोटा ऑर्डर आ गया री ऑर्डर करना है तो सेम साइज हो ऐसे जोड़ी नहीं है, या फिर एक ही आइटम मंगा रहा हूँ ऐसा भी जोड़ी नहीं। हो सकता है मैं लैपटॉप मंगा रहा हूँ साथ में मॉनिटर भी मंगा लूंगा, साथ में और भी दो चार चीजें मंगा लूंगा। इसका तरीका क्या कर सकते हैं आप, कैसे सॉल्व करें? तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली लिंक तो नहीं होता है, लेकिन जब आप ऑर्डर कंफर्मेशन के अगेंस्ट में पीओ जब भी बनाना है, मैं ऑलरेडी बना हुआ पीओ खोलता हूँ जो मैंने ड्राफ्ट किया था उस समय। अब यहाँ पे एक एडिशनल जैसे प्रोजेक्ट नंबर मैंने करके एक फील्ड डाल रखा है। ये फील्ड बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, मैंने एडिशनल फील्ड डाल रखी है। कैसे डाला है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सेटिंग्स में आप जाओगे, सेटिंग्स में एडवांस में जाते हो, डॉक्यूमेंट फील्ड का ऑप्शन आता है। इस डॉक्यूमेंट फील्ड में आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो परचेज ऑर्डर। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट नंबर का मैंने एक फील्ड डाल रखा है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से आपका जो भी ओ नंबर या जो भी XYZ जो भी उसको बोलना है आपको, आप वो नंबर का फील्ड डाल दो यहाँ पे। उसमें आप अपना ऑर्डर नंबर जिस भी ऑर्डर के लिए पीओ रेज कर रहे हो वो नंबर डाल देना। ठीक है, मल्टीपल ऑर्डर होगा तो कॉमा करके डाल सकते हो, जैसे भी आपको डालना है। यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया लेट से, तो मैंने OC0010 करके यहाँ पे सेव किया। अभी मैं वापस ड्राफ्ट में ही सेव कर रहा हूँ, आपको मैं ड्राफ्ट की ही रिपोर्ट जनरेट करके दिखा देता हूँ। मैंने ये ड्राफ्ट की जो रिपोर्ट जनरेट की है इसमें just give me 1 second. मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा ये क्यों नहीं फेच हो रहा है यहाँ पे। शायद ये डमी प्रोफाइल है, इसका अपडेट मतलब ये डमी सर्वर पे मैं काम कर रहा हूँ तो इस पे अपडेट वहाँ का प्रोजेक्ट नंबर लिखे थे और यहाँ आइटम में सर्च करे इसलिए। सॉरी 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 मैंने प्रोजेक्ट नंबर लिखा था, माय बैड। तो प्रोजेक्ट नंबर पे लिखा था मैंने OC समथिंग। अभी भी नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार क्यों नहीं आ रहा है। ये वो है आपका डमी सर्वर है इसलिए इसमें कुछ इशू हो रहा होगा। मैं फिर भी एक बार चेक कर। प्रोजेक्ट नंबर लिखे हैं तो वो हम लोग चाह रहे हैं कि ऑर्डर कंफर्मेशन जो कर रहे हैं जनरेट हो रहा है उस पे प्रिंट में ना आए, जैसे अभी वहाँ पे दिखा रहा है प्रीमियम में, वहाँ पे नहीं चाहिए। तो सिर्फ रिपोर्ट में रिपोर्टिंग के लिए चाहिए मेरे को, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। तो जी अभी ऐसा है कि ईमेल में नहीं जाएगा, ये सेटिंग ऑप्शन है
लेकिन प्रिंट में नहीं आया ये नहीं है। जैसे अगर आप ईमेल करते हो ना ऑटोमेटिकली, तो ईमेल में ये चीज नहीं जाएगी, ये आप सेट कर सकते हो। क्योंकि ये हमारा इंटरनल है, इसको कस्टमर हाँ, से इसको कोई राइट राइट। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट नंबर लिखा है, प्रोजेक्ट नंबर की जगह कुछ और नंबर लिख दो जो कि उसको सामने वाले को नहीं पता हो, तो उस तरह से आप कर सकते हो। हाउएवर अभी ये ईमेल पे नहीं जाता है, प्रिंट में अभी आता है। ठीक है, प्रिंट का अभी सोल्यूशन के लिए आप एक बार चैट रेस कर देना, आई लुक इनटू कि प्रिंट में से हटा सकते हैं क्या। मैं एक बार टेक टीम से डिस्कस करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपका जो ईमेल जाता है उसमें नहीं आता है, उसमें क्यों नहीं आता है मैं दिखा देता हूँ आपको। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है ईमेल पे आए कि नहीं आए। जैसे आप जब भी सेट करते हो ना डॉक्यूमेंट फील्ड, पीओ के लिए सेट किया मैंने, मान लो नया फील्ड ऐड करता हूँ, तो यहाँ ये पूछता है कि शो काउंटर पार्टी करना है कि नहीं करना है। अगर आप शो काउंटर पार्टी हटा देते हो तो आपके ईमेल जो जाता है ऑटोमेटिकली सिस्टम से, उस पर नहीं जाता है, व्हाट्सएप पे भी नहीं जाता है। लेकिन जब आप प्रिंट ले रहे हो, क्योंकि आप खुद ही प्रिंट आउट ले रहे होते हो, तो उसमें प्रिंट में आता है। ठीक है, तो वो अभी मैं एक बार टेस्ट कर चेक कर लूंगा टीम से कि वो हटा सकते हैं क्या। ठीक है, जी। इसमें सर सबसे बड़ा चीज क्या है कि अभी जैसे फ्री सॉफ्टवेयर आप लोग बोले लाइफ टाइम फ्री है, प्रोडक्शन वाला पार्ट लेने से वो प्रीमियम हो जाएगा, बट अभी क्या है कि इसमें सिक्योरिटी का एक सबसे बड़ा बात आता है कि सिक्योरिटी, जैसे डाटा का सिक्योरिटी, या फिर कल को हम लोग यूज कर रहे हैं, कल को बैक सपोर्ट क्या मिलेगा इसमें। सो आई विल टेल यू अबाउट की सिक्योरिटी के लिए दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है कि हम सर्वर कौन सा यूज करते हैं। तो अगर आप गूगल करोगे AWS सर्वर, अगर आप गूगल करते हो तो Amazon वेब सर्वर होता है, विच इज वर्ल्ड वाइड रैंक 1 पे अभी। ठीक है, विच इन टर्म्स ऑफ सर्वर क्वालिटी या सर्वर मेंटेनेंस या फिर सर्वर का बैकअप जो होता है, उसके केस में वो बेस्ट सर्वर है। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं आपसे कि ये बैकअप कितना होता है, तो बाय डिफॉल्ट AWS 6 बैकअप लेता है सर्वर का। तो आपका डेटा सिक्योरिटी में वहां पे कंसर्न नहीं आता है कि आपका डेटा लॉस हो गया है, सब कुछ हो गया। तीसरा कंडीशन होता है कि कैन ट्रांजैक्ट एक्सेस योर डेटा, तो नो, उसके लिए डेटा आपका इंक्रिप्टेड रहता है, उसका दिक्कत नहीं आता। चौथा होता है आपका कि लेट्स से कि आपको कभी आप आज ट्रांजैक्ट छोड़ के चल जाते हो, आप यूज करना बंद कर देते हो, मैं उसके बाद क्या करूंगा। तो सबसे पहले आपका डेटा, जैसे आप जीमेल होता है ना कि जीमेल आपने 5 साल बाद जाके भी लॉगिन किया तो आपको जो पुराने मेल्स होंगे वो दिख जाएंगे, ऐसा नहीं हो गायब हो गया। सिमिलरली क्योंकि ये फ्री सिस्टम है, आपका रिपोर्ट का एक्सेस हमेशा रहता है। तो जो भी डेटा आप देख रहे हो वो सारा डेटा, एक तो रिपोर्ट हमने इतनी सारी इसीलिए बना रखी है कि सारा डेटा रिपोर्ट में ऑलरेडी है। उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट जितने भी बने हुए हैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी करना है तो यहाँ पे बल्ब सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। उसके अलावा सिंस इट इज मतलब मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं है, लाइफ टाइम फ्री सिस्टम है तो आपका अकाउंट बंद हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि इसमें जैसे कुछ कुछ फील्ड्स में मेरे को मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो क्या मतलब उसका कस्टमाइजेशन करवाया जा सकता है। सो डिफरेंस ये है कि सी इज ट्रांजैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल जो आज आप यूज कर रहे हो, मेरे जितने भी मैंने बताया 20,000 प्लस कस्टमर्स हैं जो यूज कर रहे हैं आज के डेट में, मेरे 60,000 प्लस कस्टमर साइन अप्स हैं, जिसमें से 20,000 प्लस कंपनीज आर यूजिंग ट्रांजैक्ट। उन सबको सारा मॉड्यूल सिमिलर दिखता है, जैसे आपको जो ट्रांजैक्शन दिख रहा है उनको भी ट्रांजैक्शन पेज वैसा ही दिखेगा। आपके ट्रांजैक्शन अलग हो सकते हैं, उनके ट्रांजैक्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल वाइज चेंज नहीं होता। इसका बेनिफिट क्या होता है कि कल को मैं कोई भी नया फीचर लाता हूँ ना, आई एम नॉट हाइडिंग दैट विथ फ्रॉम एनी ऑफ द कस्टमर। मैं ऐसा नहीं होगा कि कल को 4 नए ऑटोमेशन लेके आया ट्रांजैक्ट के लिए और वो आपको नहीं मिले, किसी और को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिस्टम का यूनिफाइड होना कि सबको एक जैसा सिस्टम मिले। आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जैसे मैंने एडिशनल फील्ड डालने का ऑप्शन दिखाया, वो सब चीजें कर सकते हो, बट नॉट मच ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम आपके लिए मैं कस्टमाइज करके दे दूंगा, ये मैं किसी के लिए भी नहीं करूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, I guess I have to rush for another meeting. I'm already getting late, 25 minutes late from the for the meeting. So सॉरी सॉरी, हेलो। छोटी से एक रिक्वेस्ट है। please. अच्छा, जो फ्री वर्जन है और जो पेड सर्विसेज हैं, चाहे जो भी मॉडिफिकेशन से चार्ज है, वो मुझे कब मिल सकता है अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो? डिपेंड करेगा, मैंने जैसे अभी बताया कि मॉडिफिकेशंस जो आप बोल रहे हो, इट इज नॉट समथिंग कि आप मुझे आज कोई एक कंपनी आती है मुझे बोलेगी कि मैं एक्स अमाउंट दूंगा, आप ये मॉडिफिकेशन कर दो, तो वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
तो जो भी डेवलपमेंट होता है हम लोग का, आप सजेशन दोगे मुझे, जो भी आप चैट में डालते हो वो सजेशन पे वी वर्क ऑन, बैकएंड टीम वर्क्स ऑन दैट। उसको इवैल्यूएट किया जाता है सबसे पहले कि यार मार्केट में इसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितने % ऑफ द कस्टमर्स को है। अच्छा अच्छा, आप Let's मैं say, समझा, आपका पॉइंट समझ में आ गया मुझे। वो एज अ फीचर रिलीज होता है। हाँ मैं समझ गया, आपका मोटिव समझ गया मैं, इतना ही से सर। हाँ, मैं क्योंकि वो सबके लिए लेके आऊंगा, मैं सिर्फ हाँ उसके लिए मैं नहीं समझ लेके गया। आप अब आपके लास्ट फर्स्ट वर्ड से ही मैं समझ गया कि ये उसी के लिए बेनिफिट लिए, जैसे कि मान लो कुछ नया फीचर्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये करीब मेरे से अगर करीब 10 बंदे को बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप काम करेंगे। डेफिनेटली वो ऐसे भी लेके आऊंगा, मतलब उसके लिए मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगूंगा कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पैसे तो मैं कर दूंगा या पहले कर देता हूँ आप ज्यादा पैसे दे दो, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद सोचो ना, अगर ये सब चीजें करनी होती है तो मैं प्रोडक्ट फ्री क्यों रखता आज के डेट में। मार्केट में आप जाओ, मार्केट में प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट किनका है? ये आपका खुद का प्रोडक्ट है? yes, so we have started this firm, so I'm one of the founding member, not the co-founders but one of the founding members. The co-founders are the 3 co-founders IIT खड़गपुर के, IIM अहमदाबाद के graduates हैं, और we started back in 2017 हमने स्टार्ट किया था। राइट नाउ मैंने बताया कस्टमर बेस और ये सब डिटेल बताई आपको। थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे? एक्चुअली मेरा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, थोड़ा सा मैं भी आपको समझना चाहिए। मैं एक लिंक भेज देता हूँ, आप वेबसाइट पे जाओगे वहाँ सब कुछ दिया हुआ है वैसे, जी प्लीज। इसलिए मैं वेबसाइट का आपको लिंक भेज देता हूँ, हु वी आर, वाइट अबाउट अस, आप वहाँ देख के सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। मैं यही चैट में डाल रहा हूँ अबाउट अस, वहाँ पे आप टीम और कस्टमर सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, हेलो सर। यस प्लीज। यस सर, जैसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अपना जो रॉ मटेरियल है आरएम है, वो अपन बैच वाइज लोट वाइज कैसे अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर? तो आपका पर्पस बताओ मुझे पहले, आपकी कंपनी क्या करती है? एलईडी लाइटिंग है सर, जिसमें मैनी मोर कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और सारे यूज एक्चुअली बैच वाइज लोट वाइज, सभी कंपोनेंट्स बैच वाइज लोट वाइज यूज होते हैं हमारे इसके लिए, तो उसी चीज के लिए जाना था। और जैसे एक और है कि अपना मल्टी लोकेशन, जैसे एफजी आरएम है, ये अपने जैसे 2-2 यूनिट है, तो उसमें अपने कैसे मैनेज करेंगे अपन रॉ मटेरियल को, एफजी को, जैसे 2-2 यूनिट के अंदर 2-2 स्टोर है अपने पास, तो उस चीज को अपन कैसे मैनेज करेंगे? आई गेस मेरी स्क्रीन आपको दिख पा रही होगी। पहली चीज, यस सर, यस सर, यस सर। टू आंसर योर क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख रहे हो सिलेक्ट स्टोर करने का ऑप्शन है, आप कितने भी स्टोर डिफाइन कर सकते हो। आपके Yes, sir. यूनिट 1 का स्टोर है, यूनिट 2 का, ये ABCD XYZ जो भी स्टोर का नाम आपने दे रखा है, वो ये हाँ, जाके आप स्टोर ऐड कर सकते हो। जब भी आप मटेरियल यूज करते हो या फिर ऐड करते हो, सिस्टम पूछता है आपसे कि कौन से स्टोर में ऐड करना है, कौन से स्टोर से रिड्यूस करना है। वो नहीं ये स्टोर एक्चुअली ऐड कैसे होंगे सर, कहाँ से ऐड होंगे ये? मैं दिखा देता हूँ। आप सेटिंग्स में जाते हो, यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन दिया हुआ, मेन स्टॉक स्टोर है। जैसे Yes. मैंने ये 3 स्टोर ऐड कर रखे हैं, आप यहाँ पे और स्टोर ऐड कर सकते हो। वो स्टोर वहाँ पे शो होगा सर उसमें हाँ, इन्वेंट्री के अंदर? जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ 3 स्टोर दिख रहा है ना यहाँ पे। अभी हाँ, मैं हाँ। इन्वेंट्री में जाता हूँ, ये 3 स्टोर यहाँ दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट ये मेन स्टॉक स्टोर ही होता है, बाकी जो है वो मैंने बना रखे हैं। और इसके अंदर जो जो अपनों ने जैसे प्रोडक्ट्स है या फिर रॉ मटेरियल है, जिस जिस स्टोर के अंदर अपनों ने सेव कर रखे हैं, वो जैसे अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे वहाँ नहीं पे शो नहीं, होगा? नहीं, नहीं, आपके सारे आइटम एक जगह रहते हैं, स्टोर के हिसाब से स्टॉक चेंज होता है। वो आइटम कैटेगरी में ही शो होगा वो, मतलब हाँ, स्टोर? वो वैसे ही शो होगा। जैसे ये स्टॉक मैंने FG स्टोर किया तो ऐसा नहीं है यहाँ से स्टील गायब हो गया, स्टील ऐसे ही है। इसका स्टॉक FG स्टोर में 0 है। हाँ, वो स्टॉक वो शो 0 करेगा मुझे। या फिर शॉप फ्लोर स्टॉक में इसका स्टॉक 0 है। हाँ, ऐसा नहीं कि आइटम अलग डिफाइन किया हुआ है। हाँ। और ये बेच वाइज और लोट वाइज कैसे डिफाइन होगा अलग अलग अपना बैच रॉ वाइज मटेरियल? ऐसा है कि आपको जैसे आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपने कोई परचेस किया है, परचेस करते समय जब आप, मैं दिखा देता हूँ, परचेस के बाद जब इन्वर्ट करते हो, इन्वर्ट में हाँ, सिस्टम पूछता है आपसे कौन सा बैच का है। अभी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको एग्जैक्टली। लाइक ए जीआरएन नंबर सर? हाँ, तो GRN पे आपका ऐड बारकोड करके ऐसा ऑप्शन आता है GRN। हाँ, आप वहां पे जाके अपना बैच नंबर डिफाइन कर सकते हो, जो भी और बैच। हाँ, ये ठीक है सर, ये बारकोड अपनों ने जनरेट कर दिया, सब ओके हो गया। लेकिन जब इसको प्रोडक्शन में इश्यू करेंगे, प्रोडक्शन में भी एक तरह से बेच वाइज ही इश्यू होगा ये? प्रोडक्शन में जब आप इशू कर रहे हो ना, तो वहां पे पूछे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कोई नंबर डालूंगा ना, तो वो अगर इसका बैच पहले से डिफाइंड होगा तो वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा कि क्या क्या बैच डिफाइंड है इसका। अब 200 क्वांटिटी ऐसा हो सकता है 4 बैच में होगा,
तो वो चारों बैच यहाँ पे सारे बैच दिखा देगा। आप चूज कर सकते हो कि 50 क्वांटिटी इस बैच का दिया, 100 क्वांटिटी इसका दिया, 50 क्वांटिटी अलग बैच का दिया। वो सब आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट इनटू चाइल्ड करता हूँ तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने 100 दिया किसी और बैच का, फिर मैं यहाँ पे 100 देता हूँ ABC। अभी यहाँ पे मैंने पहले से डिफाइन नहीं कर रखा है, इसलिए Yes, आपको sir. डिटेल में नहीं लिखा पाऊंगा। आप यहाँ पे और डिफाइन करना है तो लेट्स से, तो आप देख रहे हो कि मैंने 25A, Yes, sir. 3A2, A1 तीन मैच में दिया है, 75 एक का, 100 एक का, 25 एक का, Yes, ऐसा। sir. और ऐसे ही मैं सबमिट करूंगा तो वो सेव हो जाएगा। ये आप जब प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करते हो ना, जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजते हो उसके अगेंस्ट में ये ऑप्शन रहता है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाऊं, WIP में जाता हूं मैं, बारकोड डिफाइन करने का यहीं पे ऑप्शन रहता है। जो भी आपने अप्रूवल रिक्वेस्ट दिया होगा वो लिस्ट आ जाएगा और सेम प्रोसेस होगा। मैं इस पे ऐड करना है तो यहाँ पे ये देख लो आप, ये खुल के आ गया, आप इस पे ऐड कर सकते हैं सेम तरीके से जो मैंने किया। Yes, sir. ठीक है। और इसमें जैसे सर अपना जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन है, जैसे अपना ना ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर अपने 5 का है और अपनों ने जैसे पार्सली डिस्पैच कर दिया उसको। ठीक अपनों है। ने जैसे कोई 5 पीस का ऑर्डर कंफर्मेशन है, 3 डिस्पैच कर दिया, 2 अपने पास बाकी है। लेकिन जब मैं इसको डमी में जाके देखता हूँ ना सर, तो एक्चुअली इसको जब चालान काट, जैसे 3 पीस ऑलरेडी डिस्पैच हो चुके हैं, और जब उसमें अपन फिर वापस जब चालान के अंदर जाके जनरेट करता हूँ तो वापस वहां पे वो 5 पीस दिखाता है। तो जैसे कोई अपना कोई बंदा है जो एक्चुअली देखिए, दो तरीका होता है, एक होता है चालान के थ्रू डिस्पैच करना, एक होता है इनवॉइस के थ्रू। चालान के थ्रू जो डिस्पैच करते हो आप, दैट इज, अगर मैं गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बताऊं, चालान इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, एक्चुअली जो अपना जो इन्वेंट्री डेस्कटॉप है ना सर, इसके अंदर वहां पर एक्चुअली शो नहीं कर सकता है क्या? जैसे अपने पार्सली डिस्पैच किया तो अपना ऑर्डर कंफर्मेशन कितने पीस का था और कितना अपनों ने डिस्पैच कर दिया। बहुत मुश्किल होगा ना, आप सोच के देखो। आप एक बार एक डैशबोर्ड खुद से कभी पेन पेपर में बनाना, जब आप इसको बड़े लेवल पे स्केच करोगे ना तो पॉसिबल ही नहीं है वहां पे दिखाना कि ये इतना का स्टॉक था, इतना माइनस हो गया, इस ऑर्डर का इतना, इस ऑर्डर का इतना। क्योंकि आपके एक दो ऑर्डर होंगे तो ठीक है, कल को यही ऑर्डर 500, 200, 300 बन जाते हैं, वो पूरा। नहीं, वही वही ये सर एक्चुअली हमारे मैन्युफैक्चरिंग में यही है issue। जैसे पार्सली कोई डिस्पैच होता है क्योंकि नंबर ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स है, जैसे 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स है, अलग अलग कलर वाइज है, शेप वाइज है, नंबर ऑफ है। तो वही चीज है सर कि जैसे अगर अपने ट्रांजेक्शन वाले उस ब्लॉक में ऑर्डर कंफर्मेशन के अंदर अगर ये शो हो जाता है। आप यहीं पे देख लो ना, एक रिपोर्ट जनरेट कर लो, जो मैंने पहले हाँ, से पहली चीज आपको दिखाई थी। मैंने आपको यही तो दिखाया था कि जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हो तो इस रिपोर्ट में आपको ऑर्डर क्वांटिटी पार्शियली आपने डिस्पैच किया है वो क्वांटिटी, एक मिनट, ये आपका ऑर्डर क्वांटिटी उसी क्वांटिटी है। हाँ, हाँ। तो ये पर्टिकुलर एक डिस्पैच ऑर्डर क्वांटिटी, कंफर्मेशन का भी शो करेगा क्या? हाँ हाँ, ये ऑर्डर डिस्पैच क्वांटिटी हो गया, आपका बैलेंस हाँ, क्वांटिटी हो गया, आपका करंट स्टॉक हो गया, ये चारों चीज दिखाई रहा है। आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर का देखना है तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर डाल दो यहाँ पे, या फिर हाँ। पर्टिकुलर कस्टमर का देखना है वो डाल दो, पर्टिकुलर आइटम का देखना है तो आइटम का नाम डाल दो। सारे ऑप्शन दिए मैं आपके पास यहाँ पे। Sorry for interrupting. Actually, I have another meeting. So, या so प्लीज no. प्लीज, Yes. Thank you so much. थैंक यू, और थैंक एक चीज और है सर, जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूजर है, अलग अलग अपने जैसे RM के अलग अलग यूजर्स हैं, और अपना बॉम में वो सारी चीज अलग अलग इसका अपना अलग अलग है। बॉम में सबका अपना अलग अलग रहेगा, मतलब मतलब जैसे डिफरेंट यूजर्स है, रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, और इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजर है। ये अपना जैसे 2 स्टोर है, रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2। जैसे अपन बॉम जनरेट करते हैं उसको इश्यू करेंगे, और अपना वो उसको जब इश्यू करेगा पब्लिश करने के बाद में, तो रॉ मटेरियल को दोनों यूजर अलग अलग इश्यू करेंगे या फिर एक से ही इश्यू हो जाएगा वो? जब आप बॉम्ब बनाते हो यहाँ पे तो हाँ, बॉम्ब में ओवरऑल बिल ऑफ मटेरियल का एक स्टोर होता है कि रॉ मटेरियल का स्टोर कौन सा है आपका, RM स्टोर यहाँ पे डिफाइन करते हो आप। रॉ हाँ। मटेरियल स्टोर से लेना है वो डिफाइन करोगे तो वो सारा रिक्वेस्ट उसी स्टोर को जाएगा। अगर आप बोलोगे कि एक बटरफ्लाई, ही बॉम में, हाँ नहीं सर, एक्चुअली ये है कि अपने एक ही बॉम में 2 मटेरियल का नहीं स्टॉक यूज वो आ रहा है, तो नहीं, वो कैसे होगा? वो यहाँ पे नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो नहीं पॉसिबल। और एक जैसे मल्टीपल अपन रॉ मटेरियल का अगर PO जनरेट करें मल्टीपल प्रोडक्ट्स का, वो आपको ऐसा करना होगा, प्रोडक्शन स्टोर या फिर परचेज स्टोर, एक कॉमन स्टोर बनाना पड़ेगा जैसे उसमें। इन्वेंट्री है, इसमें लो स्टॉक अपना है, ये है, जैसे शो करेगा 3-4 आइटम एक साथ शो किए, और अपन इन 3-4 आइटम का ही एक साथ अगर
पीओ जनरेट करें, हम्म। वो कैसे पॉसिबल होगा? तो उसमें बहुत सारे कंडीशन है। आप जब सोच रहे हो तो आप एक ही सोच रहे हो कि मेरे पास एक ही टाइप के आइटम खत्म हुए हैं, एक ही बंदे को भेजना है। लेकिन ये हो सकता है कि अलग अलग टाइप के आइटम हो, अलग अलग बंदे को परचेज के लिए भेजना हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि यार वो एक ही जगह से एक पीओ। ये वही मैं बोल रहा था, ये सुन के बहुत इजी लगता है कि मेरे 4 आइटम घटा हुआ है, मुझे चारों का पीओ भेजना है, एक बार में भेजता है। लेकिन जरूरी नहीं ना चारों का एक ही वेंडर को भेज रहे हो। नहीं तो सर एक्चुअली अपन जब वहाँ पे पीओ जनरेट करेंगे तो अपन अपने को यहाँ पे जब इन्वेंट्री के अंदर दिखाएगा लो स्टॉक कौन कौन सा है, 3-4 आइटम है, तो हाँ। वापस अपने को एक चीज ऐड करके फिर वापस देख के ना आना पड़ेगा कि दूसरी चीज कौन सी थी, फिर वो ऐड करो। आप मल्टीपल टैब पे कर सकते हो ना, यहाँ पे आप एक बगल वाले टैब पे यहाँ पे काम कर लो। आपको जरूरी नहीं ना कि इसी में चेंज करना। आपको ये दिक्कत तब है जब मैं इसी में जाके बोलूँ सारा काम करने के लिए। आप बगल वाले टैब पे खोल लो, PO, हाँ वो तो कर ही सकते हो। आप यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से नाम आप यहाँ से कॉपी करो, बगल वाले पे जाके पेस्ट कर लो, फिर दोबारा कॉपी कर लो। आपको तो टैब स्विच करना है। हाँ, वो अलग अलग टैब में खोलना पड़ेगा। देखो जैसे आप टैली में काम करते होगे शायद, तो उसमें आपको बैक हाँ आना पड़ता है, दोबारा वापस पूरा जाना पड़ता है, फिर बैक आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। यहाँ पे वो इशू तो है ही नहीं। आप 4 टैब खोल के रखो एक बार में। मैंने आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 10 टैब खोले हुए, 17 टैब खोल के मैं काम कर रहा हूँ अभी आपको। तो उससे तो ओके दिक्कत ही सर। नहीं है आपको। हाँ, और एक्चुअली एक और इश्यू था सर, जैसे बॉम्ब वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है और हाँ। उसका जैसे अपने राउटिंग है, राउटिंग में अलग अलग प्रोसेस के अंदर राउटिंग में चल रहा है। जैसे ये राउटिंग अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो एक्चुअली जैसे प्रोडक्शन के अंदर जो डेस्कटॉप उसका जो है वहां पे शो करेगा कि एक्चुअली कि इस राउटिंग ये राउटिंग कंप्लीट हो गई है, इस राउटिंग के अंदर ये प्रोडक्ट चल रहा है। राउटिंग की अलग रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट दे सकते हो। राउटिंग की यहाँ पे रिपोर्ट दी हुई है कि राउटिंग डिटेल्स क्या चल रहा है, किस प्रोसेस का कितना हाँ प्रोसेस नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि उसका कौन से स्टेज तक राउटिंग हो गया है या कितना बचा हुआ है। मैं एक चीज करता हूँ अभी, एक्चुअली मेरा एक मीटिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। मैं इसका एक बार आप एक बार चैट रेस कर देना, मैं टीम को बोलता हूँ वीडियो शेयर कर देंगे आपको। एक और इश्यू था सर, एक्चुअली हमारे क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट बहुत 1000 ऑफ है। एक्चुअली मेरे को जैसे अब एक्सेल से अपलोड करना है तो आपका एक टाइम में 500 के आसपास ही अपलोड हो सकता है। तो जैसे हमारे तो कम से कम ये मान लो सर कम से कम 15 से 20 हजार है कंपोनेंट्स है, जो मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग हो गए, बहुत सारे हो गए, तो उसको हम कैसे अपलोड कर पाएंगे? आप एक बार लिस्ट बना लो, लिस्ट बना के एक बार अगेन वही मैं बोल रहा हूँ, बेस्ट सोल्यूशन आपको चैट पे मिल जाएगा। अगर उसका कोई भी अल्टरनेटिव सोल्यूशन होगा, पॉसिबिलिटी होगी कि बैकएंड से कर सकते हैं या किसी तरीके से आपकी प्रोफाइल पे अपडेट। एक्चुअली मैंने डेमो में सारा कर लिया सर, एक्चुअली मैंने बॉम्ब बना लिया, क्रिएट कर लिया, चाइल्ड बॉम्ब। एक बार सुनो तो, आप मेरी बात तो सुनो। मैं बोल रहा हूँ ये यस 15-20 हजार जो भी आइटम है, इसकी लिस्ट आप बना लो। एक्सेल हाँ, बना लोगे आप? नहीं वो ऑलरेडी है मेरे पास। ऑलरेडी है। आप यस एक सर। चैट पे जाके ये प्रॉब्लम रेज कर दीजिए, क्योंकि वो लोग बैकएंड टीम से कनेक्टेड रहते हैं, टेक्नोलॉजी टीम से एक बार बात कर लेंगे कि इसका कोई और अल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। अगर वो हाँ कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कमिटमेंट दे दूं, देखो सामने से तो 500 का ही लिमिट है। हाँ, अगर कुछ और ऑप्शन आपके लिए कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके से, हाँ तो वो वो आपको सजेस्ट कर वही देंगे। इशू, हाँ वही इशू मेरे साथ बॉम्ब में आ रहा है कि ओनली वन टाइम 10 बॉम्ब्स अपलोड हो सकते हैं, लेकिन बॉम्ब भी मैनी है, बहुत सारे बॉम्ब है, एक ही बॉम्ब के अंदर दोनों अलग चीज में आपको, अलग। दोनों चीज में आपको हेल्प कर देंगे वो। आप एक दो चैट पे रेज कर दो कि ये दोनों चीज है, आप डेटा रेडी करके आप डेटा शेयर कर दो उनको। दे विल हेल्प यू आउट विद दिस थिंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्व कर देंगे, हाँ हाँ ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक और यू। एक चीज ये इन्वेंट्री के अंदर जो कैटेगरी है सर, ये सर्विस वाला प्रोडक्ट तो आता है सर, ये सर्विस क्या चीज है सर एक्चुअली? सर्विस किसी केस में आप जॉब वर्क करवाते हो या कुछ करवाते हो तो उसकी वो चीज है, वो सर्विस है, वो वाला है। ठीक, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, वंडरफुल डे। ये वाला वीडियो सर एक्चुअली मेल पे आ जाएगा? हाँ हाँ, मिल जाएगा। और एक्चुअली जैसे 1 to 1 अगर कॉल चाहें तो वो फिर उसके लिए लिंक? आपको चैट पे ही बात करनी पड़ेगी सर, दैट इज ठीक द बेस्ट वे। है, ओके। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।